Okay, good morning, everyone. My name is Avijit Nath, and I am the program manager at Vidya Lankar. And I hope I have met most of you. And today we are going to do this session with Bhavendra, and he is there. He will be joining, and I think he is already there. He has put his video on. गुड मॉर्निंग भावेंद्र भावेंद्र आवाज आ रही है एम आई ऑडिबल Morning. स्टूडेंट्स Yeah, good morning, good morning. So, the format of today's webinar would be, before having a conversation with Bhavendra, I will just give you a brief about GATE. Okay, what GATE exam is and what opportunities you will get. I'll just take 5 to 10 minutes. Then we will quickly, sum up to Q&A session, question answer session. We have already received a lot of questions from all of you. Okay, so we will first handle those questions. I have a list of, I think, around 30-35 questions that students have asked. So we will take those questions one by one. And in the meantime, if you have any questions, if you want to ask questions, please feel free to ask. Okay. And I want this session to be, to be a both way conversation. आप लोग please खाली सुनो मत, पूछो भी. Okay. The more you ask question, the more you will get to know things. Okay. Now, so today's guest is Mr. Bhavendra Jha. He was our student. Yeah, in 2018, and he has secured GATE All India rank of 216 in mechanical engineering. And he was, of course, he was selected for IIT Madras. He went there, but later on he got a job in Indian Oil, which is a public sector undertaking. We all know it comes under Maharatna. So he decided to uh, grab that opportunity, and now he is, I guess, in IOCL Mathura. Okay, and he is working there as officer, as mechanical officer at IOCL. And of course, he will be guiding you about the entire preparation strategy and everything. Okay, so before that, Bhavendra, I'll just take 5 to 10 minutes. Okay, after that we will start taking questions from students. And I think while giving you this brief presentation of 10 to 15 minutes, most of your doubts will already be cleared. Okay, क्योंकि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछा है वो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन के ऊपर ही है. तो जब मैं प्रेजेंटेशन लूंगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल, मोस्ट ऑफ योर डाउट्स एंड क्वेरीज विल ऑलरेडी बी रिजॉल्व. उसके बाद देन वी विल हैव ए discussion. Right now, so basically I will start with paths after graduation. Okay, every engineering students will basically have these two options. One, jobs, and the second is post graduation. Now both these options or both these opportunities will require ample amount of preparation. Okay, if any one of you have attended our previous session, we have already discussed a lot about these two. Okay, now jobs ke terms pe you have two options. Either you can go for corporate jobs or you can go for public sector undertaking, which are government jobs. So PSUs basically are, it can be IOCL, it can be BARC, it can be BPCL, it can be, Mazgaon Dock Limited, it can be Airport Authority of India. So these are all public sector undertaking. And the gateway to get into this public sector undertaking is the GATE exam. Okay, now as far as corporate jobs are concerned, why we say you will require preparation for corporate jobs? Because you all know, like if you sit for a campus placement or if you sit for an off campus drive, maybe you will require a lot of preparation. You will need to have technical skills. You will need to clear the general aptitude round, which is first round of interview. And GATE exam preparation somehow will help you to crack campus placement as well as off campus drives, because you will be very thorough with general aptitude plus your technical skills will be boosted. Okay, so that is as far as jobs are concerned. Now PG में आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, it is basically going to be GATE. Okay, now PG maybe you will have two options. Okay, especially for second year of engineering students, because I think many second year of engineering students have joined today, and this is the right time that you decide on your career path. Okay,
okay, which exams to prepare and why to prepare that exam, okay, and finally you will have to understand the how of it, like how you will have to prepare that. So आज हम लोग तीनों भी कवर करने वाले हैं इस सेशन में, राइट नाउ एज फार एज पीजी इज कंसर्न, दो ऑप्शन है आपके पास, आप मैनेजमेंट में जा सकते हो या टेक्निकल में पीजी कर सकते हो। टेक्निकल में करना है गेट एग्जाम आपको लेना है या फिर जीआरई एग्जाम लेना है, ओके। गेट एग्जाम का अपॉर्चुनिटीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड द अदर ऑप्शन इज जीआरई। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड टू डू योर मास्टर्स प्रोग्राम यू हैव टू डू जीआरई, ओके। डिफरेंस बेसिकली होता है दोनों में। सो आप लोग क्यूएनए राउंड में जिनको भी जीआरई के बारे में जानना है या फिर गेट के बारे में जानना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जानना है, सो आप क्यूएनए में पूछिए, वी विल डेफिनेटली एड्रेस योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ओके। नाउ क्विकली व्हाई गेट, ओके, बेसिकली चार ऑप्शंस है। पहला जो भावेंद्र ने ग्रैब किया विच इज पब्लिक सेक्टर जॉब्स, ओके। IOCL is a public sector undertaking. Basically PSUs are companies where government have more than 51% stake. So number one opportunity is public sector jobs. Why to work for a public sector undertaking? Because of various reasons. So क्या क्या रीजन है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सेकंड इज कॉर्पोरेट जॉब्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग गेट you can crack any campus interview or off campus interview because you will be very apt with general aptitude, plus you will also be thorough with your technical subjects, okay, so your technical skills will be full on boosted, as well as you will be good with general aptitude. You can crack the first round, you can crack the second round, and as well as the technical rounds, okay. Third is PG program in India. So Bhavendra has also grabbed an opportunity here as well because IIT Madras में वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका था, ओके। सो इस भावेंद्र को पूरा IIT का और एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूट का भी एडमिशन प्रोसेस पता है। सो आज हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आप लोग उसके लिए भी पूछ सकते हो, राइट। PSUs का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, खाली गेट देने से ही नहीं होगा, बिकॉज गेट का जो वेटेज है PSU रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑलमोस्ट अबाउट 85%। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे जाके क्या करना है। आपने आपके पास गेट स्कोर आ गया, आपने अच्छा गेट में AIR लाया, PSUs में आपने अप्लाई कर दिया, उसके आगे किया, ओके, ये सब हम लोग बात करेंगे। फाइनली PG अब्रॉड, one exam you can also fly abroad with the help of GATE exam, okay. दो countries है specifically, Germany and Singapore, where GATE score is accepted. So these are the four opportunities broadly, okay. PSUs के अलग अलग types है, 3 types of PSUs, महारत्ना, नवरत्ना and मिनी रत्ना, based on their revenue, okay, कितना revenue generate करती है साल में, उसके basis पे PSUs को 3 टाइप पे डिवाइड किया, एंड प्लस हाउ मच दे कैन इन्वेस्ट, ओके, विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, ओके। तो इसके बारे में डिटेल मुझे लगता है भावेंद्र से पूछना चाहिए कि महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल्स है महारत्ना PSUs का सेल, ONGC, गेल, IOCL, NTPC, these are all Maharatna PSUs. There are 8 Maharatna PSUs, okay. And basically public sector undertaking are also driving force of Indian economy. अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी का जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज public sector undertaking, okay. And these are there are 100 plus public sector undertaking. For example, like मैं कुछ PSUs का एग्जांपल भी देने वाला हूँ जो लोग गेट के थ्रू रिक्रूट करती है, ओके। नाउ क्या फायदा है PSU में जॉब करने का, भावेंद्र से अच्छा कोई नहीं बता सकता, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज 60 प्लस PSUs रिक्रूट्स एवरी ईयर थ्रू गेट। INR कितना सैलरी पैकेजेस मिलता है, एवरेज पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 9 lakhs, एंड कुछ PSUs 16 lakhs अप टू 16 lakhs 18 lakhs ETC भी ऑफर करती है, ओके, बेस्ड ऑन योर पोजीशन एंड बेस्ड ऑन व्हाट प्रोफाइल यू हैव बीन हायर्ड, राइट। नाउ बेस्ट पार्ट इज यू विल बी वर्किंग फॉर योर कोर डोमेन। आपका जो कोर स्ट्रीम है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू विल गेट एन इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल जॉब। अगर आप मैकेनिकल हो, आपको मैकेनिकल के जॉब मिलेंगे। CSIT स्टूडेंट्स को सेम वैसा आपको कोर प्रोफाइल में जॉब मिलेगा। एंड फाइनली स्टेबल जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है 100%, अनलाइक प्राइवेट कंपनी वेयर वी सी ए लॉट ऑफ हायरिंग एज वेल एज लॉट ऑफ फायरिंग, राइट। सो दीज आर द बेसिक advantages of working in a PSU, right? Apart from that, of course, आप लोग लाइफ इन ए PSU, हम लोगों ने एक टॉपिक रखा है जो भावेंद्र अपने लाइफ के बारे में शेयर करेंगे PSUs में अभी, वो how he spend his entire day, okay, and कैसे काम कर रहा है। So these are examples of PSU which have recruited in the past. They are recruiting every year through GATE exam, okay. These are all big giants which are also driving force of Indian economy, right? उसके आगे there are PSUs which conduct their own exam, okay, जैसे इसरो है, BRC है, DRDO है, CSIR, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज डिटेल में। तो जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है आपके पास, आप प्लीज नोट डाउन करके रखो और
feel free to ask. Okay, जितना हो सके हम लोग आंसर करेंगे. हम लोग को आंसर नहीं भी आता होगा तब भी हम लोग आगे जाके आपको आंसर करेंगे. Right? So these are public sector undertakings where you can appear. Okay, if you are preparing GATE exam. Why? Because the pattern of exam, the syllabus are exactly similar. तो GATE exam prepare करने का फायदा ये भी है कि you can appear to these exams as well. Now, alongside GATE, you can also prepare exams like Railway Recruitment Board, SSC, MPSC, because the pattern of exam and technical जो syllabus है वो लगभग similar है. तो आप जब technical subjects पढ़ोगे तो आपका काफी सारा एग्जाम्स कवर हो जाता है और बहुत सारे टेक्निकल पोजीशंस आते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं. सो वो टेक्निकल एग्जाम्स जो गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम्स है वो भी आप अपियर कर सकते हो बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड गेट थॉरोली. राइट नाउ कॉर्पोरेट जॉब्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. ओके सो आई एम रियली सॉरी, आई विल म्यूट माय फोन. ओके सो this is about corporate jobs. Now most of the corporate jobs or most of the MNCs or most of the core companies, they will want engineers who have domain expertise. Okay, now domain expertise का मतलब क्या होता है? डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब यही होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो सो आई शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ओके, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब उस डोमेन का आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए. ओके, नाउ गेट इज वन एग्जाम व्हिच विल बेसिकली टेस्ट योर डोमेन एक्सपर्टीज. आप सिलेबस देखोगे गेट का और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखोगे, एग्जैक्टली इट विल मेक यू टेक्निकली स्किलफुल, इट विल टेस्ट योर डोमेन एक्सपर्टीज. दैट्स व्हाई कंपनीज, अभी मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल देना चाहता हूँ प्राइवेट कंपनीज का, जैसे सीमेंस है, ओके, टाटा टेक्नोलॉजीज है, L&T है. These companies they are now preferring GATE qualified students. Okay, they either go to IITs or NITs or some top premier institute in India to hire engineers, especially masters engineers who have done their masters, because they want domain expertise. जब आप मास्टर्स करोगे एक पर्टिकुलर डोमेन पे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, you will be masters in that technology. Okay, so that's why these PSUs and like the private companies, they also have started hiring engineers through GATE score. Okay, so these are the advantages. Now higher education के बारे में मैं बात करूंगा आज हम लोग, and उसमें if you have questions IIT रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में तो डिटेल में आप लोग जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज आप पूछो, क्या क्या प्रोग्राम होता है वो भी पूछो. देन IISc के बारे में हम लोग बात करने वाले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड the top premier institute in India in terms of research and development. Okay, GATE में भी जो top 500 AIs रहते हैं, their dream has been always to get into IISc, Indian Institute of Science. APJ अब्दुल कलाम भी प्रोफेसर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के. ओके, सो दो टाइप के प्रोग्राम है, वन इज MTech and one is MDes, which is Master in Design. Okay, then NITs, there are many NITs, more than 33 plus NITs are there where you can अप्लाई फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम. NITs में भी सेम 2-3 साल के मास्टर्स है. IIM में मैनेजमेंट प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. IIM सबको पता है, देयर आर मेनी IIMs इन इंडिया व्हिच आर द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट. आप गेट स्कोर के थ्रू आप मैनेजमेंट स्टडीज भी कर सकते हो. नीति एक है पवई में. ओके, नीति के भी जो कट ऑफ रहते हैं वो काफी हाई रहते हैं. 3 प्रोग्राम है नीति में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, in manufacturing management, in project management. PGDI is the flagship program of NITI. Okay, so these two institute, if you are dreaming to get into management, आप कर सकते हो. नीति का खास बात क्या है, दे ओनली रिक्रूट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. नीति में खाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते. 2 इयर्स के मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, दे विल गिव यू एन MBA डिग्री एंड प्लेसमेंट पैकेजेस आर ऑसम, 16 लाख प्लस. आप नीति में जब जाओगे, नीति में जब आप इंटर्नशिप करने भी जाओगे, देन ऑल्सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स अर्निंग lakh to 2 lakhs rupees while in their internship per month. Okay, so that is the advantages of getting into a good premier institute. जब आप मास्टर्स करने का सोच ही रहे हो तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करना चाहिए. एवरेज इंस्टीट्यूट से do not go for masters. Apart from that, we have private institute like SRM University, VIT Vellore, you can get there as well. बिट्स पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, मेसरा, गोवा, 3 बिट्स है, वहां पे आप मास्टर्स कर सकते हो गेट स्कोर के थ्रू. ट्रिपल आईटीज है, देयर आर मेनी ट्रिपल आईटीज. ट्रिपल आईटीज ऑफर मास्टर्स प्रोग्राम टू 3 ब्रांचेस, वन इज कंप्यूटर साइंस, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ये तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी में भी कर सकते हैं. इट हैज बीन कंसीडर्ड एट पार विद IIT. ओके, सो
awesome placement packages, good set of faculties, okay, you can get into triple ITs. Hyderabad, जो ट्रिपल आई हैदराबाद है, उनका सेपरेट एग्जाम होता है, बट द गुड थिंग इज सिमिलर टू गेट, एग्जैक्टली सिमिलर टू गेट, और बाकी के जो ट्रिपल आईटीज है वहां पे आप गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो. देन COPA, College of Engineering Pune है, VJTI, SPCA, these are all government colleges where you can apply for your masters. अभी ये तो हो गया मास्टर्स आपको कहाँ कहाँ ऑप्शन मिलेगा. एडवांटेजेस क्या है, आप जब मास्टर्स करने जाओगे यू विल बी गेटिंग स्टाइपेंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, 12,400 रुपीज हर स्टूडेंट को मिलता है. ओके, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं उनका फीस भी नहीं रहता. ओके, सो यू विल गेट 12,400 रुपीज एवरी मंथ एज स्टाइपेंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, while you get into this institute to do your masters. Right now, as far as studies abroad is concerned, two countries specifically, Germany and Singapore, they accept GATE score 90 percentile and above. What is required? Okay, if you can score 90 percentile and above in GATE, you can apply to these universities. Now, to get a score of 90 percentile and above, it is not difficult in GATE. Okay, ये मतलब भावेंद्र भी आप लोगों को बताएंगे. कुछ कुछ ब्रांचेस में ऐसा है, इफ यू हैव ए मार्क्स आउट ऑफ 100, आपको 45-50 प्लस भी रहेगा, योर परसेंटाइल विल बी अबव 90. ओके, AIR लगभग आपका 7-8 हजार भी रहेगा, देन आल्सो योर परसेंटाइल विल बी अबव 90 एंड यू कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटीज. ओके, NUS, National University of Singapore, has been ranked 11th globally, one of the best institute in the world, and you can apply. Nanyang Technological University is also in Singapore. Germany में क्या है, Technical University of Munich है top 100 में, then RWTH यूनिवर्सिटी है. सो ये सब यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो वी विल क्विकली गेट थ्रू द इंफॉर्मेशन अबाउट गेट. क्या क्या बेसिक organizing body is Ministry of HRD in collaboration with IITs and IISc. Eligibility is third year of engineering. Okay, अब जब थर्ड ईयर में हो तब से आप एलिजिबल हो. इस साल से स्टार्ट किया है, उससे पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही खाली गेट दे सकते थे. ओके, so eligibility क्या था, 10 plus 2 plus 4 years of education था. Now they have changed it to 3 years of education. Score validity is 3 years. Okay, so your score will be valid for 3 years. I think most of the students who have joined from second year, if you appear 23, your score will be valid for 23, 24 and 25. Okay, now test pattern is completely online, no offline test is there. Syllabus is technical as well as general aptitude, and now you can अभी आप दो पेपर चूज कर सकते हो, वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी. प्राइमरी पेपर वुड बी ऑफ कोर्स योर कोर ब्रांच एंड सेकेंडरी वुड बी समथिंग रिलेटेड टू दैट ब्रांच. ओके, आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल. कुछ भी अगर मेरा वॉइस में गड़बड़ आया या फिर मेरा वीडियो क्वालिटी में गड़बड़ है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू चैट और मे बी कोई इन्फॉर्म कर दो मुझे. नंबर ऑफ पेपर्स, यू कैन अपियर 2 पेपर जैसे, और रिलेट करके दिया है. जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग साइंस है, कंप्यूटर साइंस का जो सेकेंडरी पेपर इज मैथमेटिक्स. सो देयर इज अ लिस्ट, यू कैन चेक इन द ब्रोशर. ओके, एग्जाम कभी होता है? एग्जाम होता है ये एग्जाम होता है फेब्रुवरी में हर साल. ओके, एंड मार्च में आपका स्कोर आ जाएगा. सो दीज आर ऑल टेंटेटिव डेट्स. ऑफ कोर्स वी विल गिव यू नोटिफिकेशन ऑन दीज डेट्स जब भी डेफिनेटली हर एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा. ओके, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. वन इज MCQ, MSQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, नाउ डिफरेंस क्या है तीनों टाइप के क्वेश्चन में? MCQ में यू विल गेट 4 ऑप्शंस. ओके, only one option will be correct. कोई भी गलत ऑप्शन के लिए they will deduct 1/3 of your score. Okay, for 1 mark question 0.33 marks will be deducted. For 2 marks question 0.66 will be deducted. MSQ type of question क्या है, where you will get 4 options same, but here multiple options can be correct. लेकिन MSQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू, देयर इज नो नेगेटिव. और MSQ इस साल से इंट्रोड्यूस किया है, उससे पहले MSQ काफी टाइम तक नहीं था. ओके, MSQ टाइप क्वेश्चन, और ज्यादा मार्क्स से MSQ ज्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज NAT, व्हिच इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सीधे सीधे आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, आपको आंसर खाली पुट करना है, वैल्यू पुट करना है. 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है. ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. राइट, सो then the next type is paper pattern. Okay, so paper structure कैसा है? 15 marks will be general aptitude, 15 marks will be engineering mathematics, and 72% will be core engineering subjects, which is nothing but engineering discipline. So
this all will constitute to 100% marks. Okay, 15 plus 15 plus 17. Okay, अभी पढ़ाई कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, so that you can score a 50 plus marks or you can score a 70 plus marks or you can score something as per your goal. आपका गोल क्या है? टू गेट इनटू आईआईटी कितना स्कोर चाहिए, टू गेट इनटू पीएसयू कितना स्कोर चाहिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग अभी पूछोगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी लिख के भेजा है, सो वी विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस. ओके, these are the syllabus. So what I'll do is you quickly आप लोग एक बार सिलेबस देख लो. ओके, हर ब्रांचेस के लिए यू विल सी जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स इज 15 मार्क्स ऑलमोस्ट. मैथ्स में कभी 13 से लेके 15 मार्क्स तक रहता है. ओके, सो दिस इज सेम फॉर ऑल. जनरल एप्टीट्यूड इज 15 मार्क्स कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांचेस और बाकी आपका 70 मार्क्स का कोर टॉपिक है. एंड इफ यू carefully see the topics, जो core topics आप carefully देखोगे, you will see most of these topics are from second year and third year of engineering. Okay, and almost maximum portion will be covered in your second year itself. Okay, so that's why we are motivating second year of students to start their preparation right away. Okay, so एक ये है तीनों ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, एंड सेकंड इज कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड सिविल. ओके, ऑफ कोर्स आपको अगर सिलेबस डिटेल में चाहिए, मैं हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज व्हाट मैंने क्विकली आप लोगों को गेट का ओवरव्यू बता दिया. हाँ, गेट क्या है. सो नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू ask questions. Okay, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. if you are comfortable, you know, unmuting yourself and asking questions, we would be really happy. Okay, so I will now stop sharing the PPT. Okay, so yes, Bhavendra, what we will do is we will quickly take questions that we have got before. Okay, so many students have, okay, just a second. Yeah, okay, so the first question is from Sin Pereira, and he wants to know how will the syllabus for GATE and GRE be like. Okay, now I think this has already been covered, but yeah, so भावेंद्र, आप कुछ बोलना चाहते हो उसके लिए? गेट का सिलेबस बेसिकली कैसा होता है, थोड़ा सा उनको ओवरव्यू अगर दे सकते हो तो. Yeah, first of all, very good morning to everyone. It's been great to have you all here. Means like before I start saying anything, I would just like to congratulate to everyone who have joined this session. Am I audible, sir? थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा जोर से बोलोगे तो अच्छा रहेगा. Okay, थोड़ा सा आवाज कम है. Okay, fine. Yeah, I was saying that first of all, I just like to congratulate all the people who have joined. Yeah, is it okay? You are audible. You are audible. खाली साउंड आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है. It's okay. Okay. Yeah, so let me take my mobile to the front. Yeah, I was saying that first of all, I will congratulate to everyone who have joined this session, because you know the first decision of any achievement is that you just thought to make that decision. Means like आप लोगों ने सोचा है कि मुझे ये सेशन अटेंड करना है, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी एक माइंडसेट बना लिया है कि वी वांट टू क्रिएट अवर फ्यूचर बेटर, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ. सो उसके लिए मैं जो जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है सेशन, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा. एंड rest is the question. I will answer the question. I will answer to that question. Syllabus of GATE. Basically, the GATE syllabus is not much difference by the engineering syllabus. It's like you can say around 80 to 85% the syllabus is same, which is in our engineering. So it's somewhat like that only. So in detail you can see to this as already shared in the slides, but only the pattern of the subject, the way we have to study that makes a difference. But syllabus are mostly 80 to 85% which we study in engineering, that is same to the GATE as well. Okay, so basically the student asked difference between the syllabus in terms of GATE and GRE. GRE का जो syllabus है, that is completely non-technical. It is non-technical. Yeah, it's like yeah, correct. Means verbal. Yeah, it's like, you know, means you have to be more depth in that aptitudes part, especially that reasoning and what do you call that, quantitative and
and that verbal. You have to be very depth in that. But for the GATE purpose, the FT part is also there, but it is not up to that depth which are in GRE. Right. Mostly GATE part is focused on your technical part, which is engineering subjects. So that is the main difference between these two exams. हाँ, so गेट का जो एप्टीट्यूड लेवल है, जो गेट का एप्टीट्यूड है, दैट इज काइंड ऑफ प्रीटी इजी फॉर स्टूडेंट्स, राइट? Yeah, एक्चुअली correct. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी हो जाता है गेट का एप्टीट्यूड, Exactly. राइट? तो वो 15 मार्क्स जो रहता है, दैट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। वो 15 मार्क्स आपको लेना ही लेना चाहिए। उसके आगे फिर आप सोचो कि बाकी के सब्जेक्ट में मैं कैसे लाऊंगा। वो 15 आपको फिक्स रखो कि 15 में ऑलरेडी स्कोर करने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड से, उसके आगे क्या, ओके, हाउ आई विल मैनेज टू गेट द रिमेनिंग स्कोर। सो भावेंद्र, Correct. एक बार खाली आप क्विकली आईआईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताओ कि आपने गेट में स्कोर आया आपका, फिर उसके आगे आपने कैसे कैसे अप्लाई किया आईआईटीज में, और कट ऑफ कितने कितने थे अलग अलग आईआईटीज में, आईआईटी बॉम्बे से लेके, क्योंकि आपने सभी आईआईटीज में अप्लाई किया होगा, एटलीस्ट टॉप Correct. 7 में तो किया ही होगा, ओके? या फिर किस किस आईआईटीज में किया, वो थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को। Is the first process, the first steps to get applied to the IIT is to that first you have got the rank, right? Then after that, what happen? Every IIT start their own application form. Like Right. IIC, IIT Bombay, Madras, all top 7 IITs. So I have personally applied to all 7 IITs, top 7 IITs, and also IIC Bangalore. Okay. And normally, what happens? Some IITs conduct their own written exam and also interview, and some IIT directly select from the GATE score. So I will talk about IIC Bangalore. I was selected for it for its written exam and also interview. So IIC Bangalore conduct their written exam and interview after getting selected from GATE score, and based on the interview performance and written exam performance, they select. That is for IIC Bangalore. Okay. But for IIT Yeah. Bombay, IIT Madras, and I think IIT Kharagpur, or top 4-5 IITs, they directly select from the GATE score only. There is no written exam for the MTech. For the MTech, there is no written exam. But for the MS, if you are trying to looking for MS degree, then for that they conduct the interview. So this is the difference between MTech and MS. For MTech, they directly select from the based on the GATE score. But for MS, they conduct the interview. Yeah. So काफी लोगों को यहाँ पे ये भी नहीं पता होगा कि आईआईटीज में एमएस प्रोग्राम्स भी है, तो आप Yeah. थोड़ा सा एमएस प्रोग्राम के बारे में बताओगे कि एमएस प्रोग्राम कैसे है आईआईटीज के? देखिए बेसिकली जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब एमटेक 2 साल का होता है, 2 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगा एमटेक का, ओके? बट एमएस इट इज ऑफ 3 years. फर्स्ट मेन डिफरेंस इज दिस. But then people will think, then why I will do MS, then it will take 1 more year to get me the job. So the question is that our MTech is totally kind of theoretical oriented more. Of course, you have to do project in that as well. But MS is all about project oriented. Means you will not be in hurry to complete the subjects. You are also working in the project as well as your classroom studying is also going on. So it's Right. like combination of project oriented based degree is your MS, and only theoretical and project means like only theoretical based subject based degree is your MTech. So this is the main difference between these two. Yeah. So now you can have this question, why, how people choose this, means whether I have to do MTech Go or MS. MS or MS, yeah. Yeah. So the answer to this question, first choice is always is MTech for everyone. That's one thing sure, because everyone don't want to being in the college for a long time, because they want a job as soon as they get it. That 2 years बहुत हो गया, मतलब जल्द से जल्द job चाहिए मुझे. So first choice is of course MTech. Getting into MTech from top 4-5 IITs, and definitely you will get placement from there in good companies. Or either you can opt for PhD directly. Both IITs के link होते हैं foreign university के साथ. मैं जिस आईआईटी मद्रास में था, तो हमारे टाइम ही वो आ गया था नोटिफिकेशन, इफ यू वांट टू हैव ए फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, यू कैन हैव इट. Just apply for it. You can give an interview. If you got selected, you can have this second year. You can do in a foreign university as well. Means there are a lot of opportunity once you enter to the IITs. There is n number of opportunity. I cannot list everything here. And MS में क्या होता है कि हाँ, MTech पहला चॉइस होता है सबका. और एमएस होता है ये कि उसका जो कट ऑफ होता है एमटेक से थोड़ा ज्यादा रैंक, मतलब थोड़ा अगर आपका पीछे भी हो जाता है, मतलब फिर भी एमएस में एडमिशन लेने के चांसेस ज्यादा है. तो ये मेन डिफरेंस है मतलब. और कट ऑफ के टर्म्स पे कितने कितने कट ऑफ रहते हैं जनरली? आप एक तो मार्क्स के हिसाब से बताओ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कैसे है ना, इनको स्कोर नहीं पता चलेगा अभी.
जैसा समझ गया, स्टूडेंट्स, हाँ। हाँ मैं, हाँ उनको मार्क्स मार्क्स पॉइंट के ऑफ व्यू हिसाब से से मैं ट्राई करूंगा मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताने को, जैसे कि अभी लास्ट टाइम ही ठीक है, मान के चलिए मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूँ। ओके, सो ठीक है। आईआईटी बॉम्बे का जो कट ऑफ हुआ था इट वाज 890 गेट स्कोर, तो यू कैन एक्सपेक्ट मार्क्स वाज अराउंड जस्ट 85 प्लस, 85 plus you can expect 85 plus the IIT Bombay. I'm just I will just talk about the cutoff of the mechanical branch because I have the more idea about it. हम्म। But और other मैकेनिकल का, branch will be also have some related to that cutoff only. राइट, Yeah. मैकेनिकल का कट So ऑफ for थोड़ा हाई IIT रहता है। Bombay, yeah, हम्म। yeah, means yeah, that depends means like which course it is. Like जो कट ऑफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो डिजाइन का हमेशा ज्यादा कट ऑफ रहता है। हम्म। So it was 85 plus in IIT Bombay. In Madras will be also similar. Like for example, if in the IIT Madras, I got selected in thermal branch. Their cutoff राइट, was around in terms of grade score. If I will again speak, it was 78 marks. You can say 78 78 मार्क्स। marks, 76 marks, somewhat like this for thermal. So it's all depend on which courses also you are trying to looking for. Like for mechanical design, thermal and manufacturing is the first three core branch which people look for MTech, and there are other interdisciplinary branch also, like very integrated courses like robotics and what do you call that, nanotechnology, and there is something like the many courses are there. For this cutoff get decreased, ओके, it is less for ओके, that. So it's also depend which courses you are looking for. So if you even having a less rank, if even we have not got a good score, it doesn't make like you can't get into IIT. You can choose this interdisciplinary branch, like for example renewable energy course. It is like a future, right? So राइट, I personally consider that as a good option because now the future is all about renewable energy. So you can opt this course also in IIT and pursue the MTech from there. So it is all about depend on branches and course. But if I will tell you in overall figure, in one word, if I will in one sentence, I will sum up all this answer to this question is that if you are looking for a core branches, you should have definitely 75 plus in gate for the top 5 to 6 IIT. But if you are looking for a lower IIT, then it top cutoff will get decrease accordingly. Okay, so it is overall this answer to this question. या सो टॉप 7 आईआईटी छोड़ के बाकी जो आईआईटीज है उसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपका कट ऑफ कम भी जा सकता है, मतलब कितना कम, कम भी मतलब जा 60, सकते हैं। हाँ 60 तक भी, 100 में से इफ यू स्कोर है 60 65 प्लस देन आल्सो यू माइट गेट 65 सम, plus. It's actually it हाँ should be at least 65 plus. 65 plus, okay, okay, so that is about IITs, okay, so we will quickly see कि चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आया है। ओके, सो ये कट ऑफ तो ओके, यहाँ पे सीएस के बारे में वो पूछ रही है, एमएस और एमटेक सीएस में क्या मतलब कट ऑफ कितना जा सकता है। सो आप मान के चलो कि अगर एमटेक प्रोग्राम के लिए आप अच्छे ब्रांच Yeah. के हिसाब से भी, सो यू हैव टू एम एटलीस्ट टॉप आईआईटीज में आप जाना चाहते हो तो 75 प्लस, ओके, और And अगर also, आपको, the best way to talk about cutoff is not the marks actually, because ओके, marks तो कभी कैसा होता है कि कभी किसी साल पेपर इजी आ जाता है तो बहुत लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है। किसी राइट, साल पेपर की थोड़ा टफ हो जाता है तो मार्क्स कम हो जाता है। तो बेस्ट वे टू टॉक अबाउट दिस कट ऑफ इज रैंक, मींस राइट, इज लाइक हाउ यू आर परफॉर्मिंग विच कंपेयर टू अदर पर्सन, लाइक। राइट, So I will say राइट, that as per my experience, which I have, is like if you want to get into IIT and you are in general category, so basically aim to be in the top 200 and 150 rank. That is top IITs. I'm टॉप talking about टॉप top आईआईटीज के IITs बारे में, like IIT Bombay, IIT Madras, Kharagpur, and what do you call Kanpur. These four IITs हम्म, and IIC Bangalore. Of course, you have to be in top 100. To be हम्म, honest, you can be shocked like, oh, that much is required, but that is true. You have to get that rank, and then only you can be the part of that IIT. But हम्म, as you are going down to the IIT, lower IIT, like you have very new IITs, IIT Gandhinagar, right? IIT, there are many new IITs. I आईआईटी can't गोवा remember है, the name of it. हाँ बहुत सारे आईआईटीज है, राइट, Yeah, so for that 23 हो cutoff गया will अभी get तो, decreased accordingly. Means like that is the way. Means ठीक है, ये तो हो गया आईआईटी, उसके बाद आईआईसी हो गया, आईआईटी हो गया। अगर ये दो ऑप्शन भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, उसके आगे क्या, एनआईटीज जा सकते हैं वो लोग, करेक्ट, राइट, जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। देखिए
मतलब कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आपको अगर क्लियर है कि मुझे एमटेक करना है, तो इवन इफ यू आर गेटिंग एनआईटी, a good NIT, you can get and do the MTech from there. You can do your project well there, and from that also you can make your career well from that, from passing out from that NIT. So that is also I consider a good option. और उसके आगे एनआईटी के साथ साथ और क्या क्या ऑप्शन है, जैसे बिट्स पिलानी हो सकता है, राइट, बिट्स हो सकता है, जितने भी बिट्स है तीनों, और कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। सीओईपी भी मुझे लगता है अगर स्टूडेंट अच्छा करता है सीओईपी से भी देती है काफी अच्छे सीओपी, प्लेसमेंट देती होते हैं। है सीओपी में भी, हाँ तो कट ऑफ तो काफी नीचे हो जाती है मतलब। हाँ यार हाँ सीओपी के भी आराम से होता है, पीपल हैव डन एमटेक फ्रॉम सीओपी and they have now in a very good company, like I have हाँ personally knowing 2 to 3 person who have done the MTech from COP, and now they are in a multinational company and working very well there. So राइट। it's like all depends on you also, means like you will get the college, but you are going there and you are doing your MTech very well, then definitely you will get something better. राइट राइट। सो अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी है, आप अगर लिस्ट डाउन करना चाहते हो, यू कैन एटलीस्ट Yeah. हैव 60 to 70 कॉलेजेस इन इंडिया, है ना? एक पॉइंट है मतलब हाँ। कि मुझे लगता है गेटी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा और कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। राइट। मतलब एक ही एग्जाम में आप मार्क्स लाओ, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक द गेट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और आई विल से बेस्ट ऑप्शन, तो वन कैन और चूज। काफी हमारे स्टूडेंट्स को ना एक ये मेंटेलिटी है कि अरे हम लोग तो एवरेज कॉलेज से है, हम लोग अच्छे कॉलेज से नहीं है, हम लोग को 12th के बाद एमएस सीईटी के थ्रू एसपीसी नहीं मिला, विजेटीआई नहीं मिला, जो भी है, क्योंकि एसपीसी विजेटी का कंसीडर करते हैं कि दे आर द टॉप केजेस हो मे बी, ये सब टॉप रैंकिंग के कॉलेज है। मैं सबको बताना चाहता हूँ भावेंद्र का जो कॉलेज है दैट इज सेंट जॉन पालघर। ओके, तो भावेंद्र वाज ए स्टूडेंट फ्रॉम सेंट जॉन पालघर, उसके बाद आईआईटी मद्रास, नाउ ही इज इन आईओसीएल। तो आप अपना जर्नी बताओ उन लोगों को थोड़ा सा, मतलब दे नीड लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन। ये मुझे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एवरेज स्टूडेंट, मेरा सीजीपीआई कम है, कुछ बोलते हैं मेरा 6.5 ही है, सेकंड ईयर में हूँ मैं। अरे तुम्हारे पास अभी और सेमिस्टर है ना, तुम आप अपना सीजीपीआई तो बढ़ा ही सकते हो डेफिनेटली। तो सीजीपीआई और गेट का रिलेशन क्या है या क्या नहीं है, और वो प्लीज आप उनको बताइए। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि सीजीपीआई मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, हमने जितना पढ़ाई किया उसका रिजल्ट हमको मिला, व्हाट वी हम्म हैव डन दैट वी गॉट, राइट, इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। सो अभी गेट में क्या है कि मतलब आपका, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीजीपीआई अगर अच्छा आ रहा है तो खराब हो गया, मतलब वो अच्छा तो अच्छी बात है। अब जैसे कि आपने कॉलेज की बात कही है, मतलब तो कॉलेज बेसिकली होता किसके लिए, मतलब अगर हम एक सवाल पूछे अपने आप से, बेसिक क्वेश्चन वो है कि हम सब्जेक्ट वहां जाके सीखे अच्छे से, we can understand the subject well, we can get the knowledge from it, that subject, उसके लिए कॉलेज होता है। तो अगर आपके कॉलेज, अगर आप वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो, so it not doesn't matter from which college you are, means like you, if you are have the knowledge of it, means you are being your best from that, which that is more important, which college से हो उससे मैटर नहीं करता, आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है बस। और मतलब मुझे पता है आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया, आप पालघर से आते थे दादर क्लास करने के लिए, उसके बाद फिर आपने एक बार ऐसे भी मुझे बताया था कि सर मैं लास्ट 2 महीने में मैं दिन में 100 से 150 क्वेश्चंस लगाता था, और मैं ऐसा टारगेट देता था कि आज मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी उनको बताओ कि हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज। ओके, ऐसा ऑफ हो कोर्स, सकता है कि मुझे ऑफ कोर्स। आईआईएससी नहीं मिला, लेकिन मुझे आईआईटी तो मिला, मुझे आईआईटी नहीं मिला, मुझे एनआईटी मिला, लेकिन हार्ड वर्क See, पेज, राइट? या what during my preparation I was not sure what actually I will get, ये बहुत हम्म अनप्रिडिक्टेबल होता है ये सब एग्जाम, गेटी नहीं हम्म कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हम्म साल भर मेहनत करते हो पर जरूरी नहीं कि वो रैंक आ ही जाए, मतलब। पर हम्म एक चीज है जो मैं अपने आप को बार बार बोलता रहता था, वो यही था कि चलो भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जरूर, क्या हाँ होगा वो मुझे नहीं पता। हाँ of course the aim was to get into PSU and IITs only, but ये भी था कि चलो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं तो पढ़ाई हम्म कर रहा हूँ पर कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज क्लियर था कि मतलब इतना मैं एफर्ट दे रहा हूँ, इतना सब्जेक्ट इतना सीख रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना ही होना है। तो ये जो राइट माइंडसेट था ना, यही मुझे ड्राइविंग, मेरे मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स था मेरा थ्रू आउट प्रिपरेशन। और आई थिंक राइट मैं जो अभी जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया उन लोगों को मैं ये कहूंगा, मतलब कि आप बस एक माइंडसेट सेट कर लीजिए कि मुझे अभी से कुछ चेंज करना है अपने प्रिपरेशन, अपने पढ़ाई के तरीके में, अपने स्ट्रेटेजी में, कुछ ऐसे डिसीजन लेना है जिसके लिए तुम 3 साल बाद जाके बोल सको कि दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। तो वो राइट स्टेज आ गया है, मतलब अभी से आपको डिसाइड करना है, मतलब और यही सोचना है कि अगर आप अगर एफर्ट दे रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही आपको, कुछ ना कुछ बेटर राइट जरूर होगा। राइट। और अभी कहाँ, अभी मथुरा में हो आप?
या मथुरा रिफाइनरी उसी में मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कैसा है, मतलब वहाँ पे जॉब लाइफ कैसा है, क्या किस उस पे किस प्रोसेस पे काम करते हो वो थोड़ा बताओ। प्रोसेस के बारे में बताओ, किस प्रोसेस पे, मतलब जितना बता सकते हो उतना ही बताओ, हाँ, क्योंकि आई नो बिकॉज हम देयर आर सम पॉलिसी दैट दैट इज देयर फॉर आईओसीएल, तो जितना I will बता just सकते हो say उतना you बताओ। my job role, what exactly I do, and that is very basic. As a here I am as a maintenance engineer, ओके। and my job is that one particular unit is assigned to me, and there are a lot of equipments are there like turbines, compressor, pumps, and all are running 24 hours continuously. So my job is that to in order to ensure that reliability of that equipment, that they are working very well. Means there should not be any breakdown or shutdown of plant. That is my जॉब। responsibility. ओके। So for that, there are a lot of things we have to do. Means that we are doing in that simple way. I told you that. या सो आपके टीम में कौन कौन है, आप सुपरवाइजर होंगे राइट, और आपके टीम में टेक्नीशियंस होंगे। या हमारे अंडर वे टेक्नीशियन होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं। बाकी ओके। वी आर जस्ट लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आवर जॉब रोल इज टू जॉब तो कराना ही है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी से कराना है। जैसे कि सेफ्टी आप से जानते कराना। हो ये एक ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हजार्डस बहुत है। तो हम्म हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, मतलब एज ए हम्म इंजीनियर वी हैव टू इंश्योर दैट एवरीथिंग शुड बी हैपन इन द सेफ थिंग। इट्स हम्म। लाइक दैट इज मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू डू इट। राइट राइट। और एक स्टूडेंट है तन्मय, तन्मय ने पूछा है कि सर इज इट वर्थ टेकिंग ए ड्रॉप फॉर गेट। ओके। ही इज इन सेकेंड ईयर महाविंदर। तो मुझे ओके, लगता है कि अभी से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना उनका चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा उनका रैंक। हाँ, रैंक आ मतलब जाएगा वही है, तो मतलब वही। हाँ। फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड। जैसे कि मैं एक पॉइंट टच करूंगा यहाँ पे, मतलब ये वही है कि मतलब आप सब्जेक्ट्स कितना अच्छे से पढ़ रहे हो उसी का रिजल्ट आएगा गेट में। मतलब इट्स जस्ट हम्म। ऑल अबाउट दैट ओनली, हाउ वेल यू नो द सब्जेक्ट, दैट मच वेल रैंक यू विल गेट। इट्स वेरी और सिंपल। ड्रॉप लेने का जरूरत क्यों है, जब आपका जो सब्जेक्ट्स है सेमिस्टर एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स है वही सेम सिलेबस गेट में भी वही है, सेम तो है, वही गेट सेम है, लेने हाँ। ड्रॉप लेने का जरूरत ही नहीं है ना। आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहिए आप लोगों को, ड्रॉप लेने का सोचो ही या मत। और एम अब वही होना चाहिए। एम हाँ वही होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे रैंक लाना, और इट्स हाँ नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। अभी हाँ। ये मतलब ये बड़ा ये लगता है, मतलब कि ऐसा तो नहीं गेट में कुछ और पूछा जाता है, वही जो 4 साल हम्म हम वहां पढ़ते हैं वही पूछा जाता है उसमें। हम्म इनफैक्ट उसके क्वेश्चन जो होते हैं गेट के ज्यादा लेंथी नहीं होते, ज्यादा बड़े नहीं होते। हाँ, हम्म बस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल रिलेटेड ज्यादा होते हैं, तो उसको उस डायरेक्शन में सोचना चालू करना है हमको। मतलब जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कॉलेज में उसी राइट को उसी पर्सपेक्टिव से अगर सोचना चालू कर दे, गेट के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कॉलेज में ही, तो राइट। अपने आप प्रिपरेशन होते रहेगा मतलब। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसा गड़बड़ करते हैं कि एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो हम लोग कैसा है, स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम देते रहते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक एक टाइम पे। सपोज मेरा मैथ्स का एग्जाम है तो मैं मैथ्स ही पढ़ के जाऊंगा 2 रात 3 रात। ओके, मेरा ये एग्जाम है गेट में, लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि गेट इज एन एग्जाम जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक ही 3 घंटे में सॉल्व करना है, तो आपको पैरेलल देखो, अप्रोच मैं एक करना है। चीज हाँ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब मैं हाँ। जैसा सोचता हूँ, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। राइट। मैं मेरा जो अभी जिससे मैं और भी बहुत यंगस्टर से मेरा इंटरेक्शन होते रहता है कॉल पे ये पे, तो उनको मैं एक ही बात बोलता रहता हूँ कि डोंट सेट योर गोल दैट आई शुड हैव टू गेट ए रैंक और मार्क्स इन गेट एग्जाम। सेट योर गोल दैट आई हैव टू बी ए गुड इंजीनियर। दैट्स राइट। इट। मतलब एक अच्छा इंजीनियर बनना है मुझे। मतलब इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि पहले तो नॉलेज लेना है मुझे, और उस हम्म नॉलेज से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे। So हम्म our goal should be this, and how by using by using this goal we can crack any exam. Like you have already talked about in the slide, there is GATE is the best option, but there are other options also. So हम्म if your aim is to be a good engineer, to get हम्म। a good knowledge and try to apply the knowledge in the practical problems. So अगर ये हमारा गोल अगर बन जाएगा तो गेट और ये एग्जाम तो अपने आप हो जाएगा। राइट। गौरव ने गौरव सिंह ने पूछा है व्हाई आईआईएससी इज बेटर देन आईआईटी। ऐसा नहीं है कि आईआईएससी इज बेटर देन आईआईटी और आईआईटी इज बेटर देन आईआईएससी। दोनों का जो मोड ऑफ एकेडमिक कैलेंडर या फिर करेक्ट, एजुकेशन है करेक्ट। दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके, आईआईएससी अभी इज जैसे इसी में लोग हाँ पीएसयू में पूछते रहते हैं आईओसीएल बेटर है या ओएनजीसी बेटर है। बेटर है। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये मान सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, सबके मन में आता है ये। बट यही है कि देखो हम कंपेयर तभी दो लोग को कर सकते हैं जब बाकी पैरामीटर सेम हो गए तभी। तो हम्म इट्स नॉट कंपैरिजन, वी कांट डू कंपैरिजन दिस कॉलेज। आईआईएससी इज टोटली रिसर्च ओरिएंटेड। अगर आपको रिसर्च में अपना इंटरेस्ट करियर है। बनाना है, मतलब
उस तरह की कंपनी में काम करना, R&D में हो गया या कुछ ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में हो गया, तब IISc इज गुड। एंड ऑफ कोर्स IISc इज द फर्स्ट ऑप्शन बिफोर IIT, दैट्स व्हाई उसका कट ऑफ भी ज्यादा होता है। बट ऐसा नहीं कि IISc में नहीं मिला तो फिर IIT में कुछ नहीं होगा। IIT इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मैं 3 महीना मैंने वहां पे रहा। मैं आई थिंक इट्स वाज लाइक नॉट लेस देन हेवन फॉर मी। इट्स Yeah. वाज ग्रेट प्लेस। बहुत से अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे IIT में। सो इट्स बोथ आर बेस्ट प्लेस, व्हाटएवर यू कैन चूज दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। होता क्या है, एक बार आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में चले जाते हो ना, आईआईटी या फिर आईआईएससी में, वहां पे आपको वैसा पीयर ग्रुप मिलता है, आपको करेक्ट। वैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, फैकल्टीज मिलेंगे, इतने एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, बाहर से फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो एक्सपोजर वो अलग लेवल का होता है। तो इसके लिए सही है, स्टूडेंट्स मतलब सही है। कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, वही है। सो फटाफट मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। नबील वागले ने पूछा है, कैन वी डू एमबीए विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर? यस वी कैन। आईआईएम में देयर इज ए फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यू कैन ऑप्ट फॉर, एंड नीति मुंबई है, नीति पावई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वहां पे आप एमबीए कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर गेट स्कोर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर गेट एग्जाम? सो दिस इज फॉर भावेंद्र, हाउ हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर गेट एग्जाम? बताओ थोड़ा अपना, मतलब जो आपने जो प्रिपेयर किया था उसमें क्या क्या आपने स्ट्रेटेजी किया था, सॉल्व कैसे किया था, फॉर्मूले कैसे बनाए थे, वो सब। देखो, फर्स्ट थिंग तो मैंने थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने क्लासेस लगा लिया था विद्यालंकर में। तो मुझे लगता है कि दैट डिसीजन वाज आल्सो स्टिल आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ उस डिसीजन की वजह से हूँ कि मैंने सोचा कि थर्ड ईयर से मुझे करना है। भले ही मुझे, मैं बोईसर में रहता था, बोईसर से दादर मुझे आना था। इट वाज ऑल टोटल अराउंड 5 आवर्स ऑफ लोकल ट्रेन जर्नी। सो उस टाइम पे मेरे को लगा भी था कि मैं कैसे करूंगा ये सब चीजें, बट मैंने वो हो गया, सब मैनेज हो गया सब। सो मेरा मेन जो स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो मैं 3-4 पॉइंट बोलूंगा। एक तो बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं या सब्जेक्ट ही सारे सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर करो अच्छे से, चीजों को समझो अच्छे से। सेकंड इज योर मेक योर ओन नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। मतलब ये, क्योंकि ये क्लासेस के नोट्स तो मिलते ही हमको, दैट्स गुड, दैट इज मोर हेल्पफुल एक्चुअली, आई विल नॉट से दैट इज नॉट हेल्पफुल, बट यू लुकिंग टू दैट क्लासेस नोट्स और सम अदर सोर्स ऑफ नोट्स, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ये दूसरा नोट्स बनाना है। और सेकंड रिवीजन, रिवीजन कंटिन्यू पीरियोडिक रिवीजन रखना है। जैसे मैंने रखा था कि हर 20 से 15 दिन के अंदर मुझे एक सब्जेक्ट रिवाइज करना ही करना है। तो गेट एग्जाम होते होते मेरे एक सब्जेक्ट के 7-8 रिवीजन, 8-9-10 रिवीजन हो गए थे अच्छे से। और जब रिवीजन करना है तो उसके कुछ 20-25 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है उसी वक्त। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था, मतलब रिवीजन बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। और रिवीजन आपका कितना अच्छा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ नोट्स यू मेड। इसमें आपके नोट्स कितने अच्छे होंगे उस पर आपका रिवीजन डिपेंड करेगा। तो बाद में हो गया प्रैक्टिस। So practice is something like last stage of everything. It's like what you have done in first 3 stages, whether it is useful or not, that you can check by practicing problems. So practice as much you can. And also, as sir has told, that I used to solve around 100 questions a day, miss. But yeah, that's true, I used to solve. But I think I will just give you more, I will tell you to be more focused on the not in the number of questions, but the quality of question you are solving. I mean to say that if you are solving any problems, try to grab as much as you can from that question. What you can learn from that question, what logic you can learn from it, what knowledge you can gain from that question, what idea you can gain from that question. Means, if you are solving 10 problem only, at the end of the 10 problem is something you should feel like that. Yeah, I've learned something. Today I've solved some problem of this problem. Today I have applied my knowledge or what I have learned in my book. So this should be the perspective while solving the problem. So practice, and then you get test series, because as Sarah told in the slide, this exam is on online platform. So we don't have habit to give this test series. Like we have not done it before, right? In college also we हाँ, have मॉक टेस्ट होता क्या है, एक बार वो भी बताओ उनको, मॉक टेस्ट होता क्या है एक्चुअली, टेस्ट सीरीज होता क्या है? yeah, test series means is just like you are giving the gate exam only, like pattern is same as of gate exam. And on one more thing, you have to use the virtual calculator in that. So बहुत लोगों को तो इसी में प्रॉब्लम आता है वर्चुअल कैलकुलेटर में। तो अभी से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अभी से यूज करना चालू कर सकते हैं उसको। तो राइट। उसका आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए ज्यादा से ज्यादा। सो दैट विल गिव यू द एनवायरनमेंट ऑफ दैट गेट एग्जाम, हाउ इट इज, हाउ वी हैव टू रिएक्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो हमारा कितना एक्यूरेसी आ रहा है, कितना अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितना रॉन्ग हो रहा है, ये सब चीजें मतलब सब टेस्ट सीरीज से होता है।
ओके, नेक्स्ट फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मोहम्मद इरफान ने पूछा है पीएसयू अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा है? ओके, दोनों अच्छे हैं। See, we cannot say something is wrong, bad or something is good, you know. अब एक्चुअली होता ये है कि मतलब मैं जानता हूँ मतलब हर एक का प्रायोरिटी अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पब्लिक सेक्टर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ये सच है मतलब। आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, राइट। पर ये भी है कि पब्लिक सेक्टर ही ऐसा जगह है मतलब जहाँ पे आपको जॉब तो करना ही है, आपको उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटी देता है मतलब आपको एज ए प्रोफेशनल तो सही, पर एज ए पर्सन भी आप काफी ग्रो करोगे यहाँ पे। मतलब इतना एक्सपोजर मिलेगा आपको, मतलब ऐसा नहीं कि अब मैंने आपको बताया कि मेरा जॉब रोल मतलब मेरा काम क्या है, पर उसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। देयर आर ऑल नो एन नंबर्स ऑफ जॉब रोल्स उसको करने के लिए मतलब, तो उसके वो करने के लिए फिर मुझे बहुत चीज सीखना भी पड़ता है। स्टिल आई एम नॉट लर्निंग अबाउट कंप्रेसर एंड पंप। every week I do some session and I learn about this. That is because I am working in this company. So मतलब यहाँ पे लर्निंग भी हमेशा चालू रहेगा मतलब आपका। और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग के लिए अलग अलग भेजते हैं, अलग अलग कंपनी में भेजते हैं, मतलब आईओसीएल अलग अलग जगह भेजती है और भी पीएसयू भेजती है, तो आपको अलग अलग इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर मिलता है, ट्रेनिंग भेजती है। और भी बाद में बहुत सारे मतलब ऐसे इनका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसे ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं जो आपको एज ए पर्सन भी ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये सब पब्लिक सेक्टर का हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आई विल नॉट से इट्स बैड, आई विल नॉट से दैट, but it's all depend upon what you expect from your life, means what you want, means how what kind of life you are expecting, based on that you can choose either of them. ओके, और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स के लिए आईओसीएल में क्या वैकेंसीज होते हैं, कौन से पोजीशन होते हैं? पोजीशन होते हैं ये एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। they are all हम्म concerned about like you know all the whatever the what do you call that, means like IS डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होते हैं। बट होता ये हुई कि एज जितना रिक्रूटमेंट मैकेनिकल और केमिकल ब्रांच का होता है उतना बल्क में इनका नहीं होता है मतलब, टू बी ऑनेस्ट मतलब। तो पर हम्म होता है रिक्रूटमेंट यहाँ पे है यहाँ पे मतलब, और एक अच्छा जॉब रोल है यहाँ पे, एक अच्छा मतलब यू कैन हैव अ गुड करियर हियर इन आईयूसीएल फॉर सीएस एंड आईटी एज वेल। ओके, रोहन ने पूछा है इफ वंस गोल इज टू जॉइन ए पीएसयू, शुड वन गो फॉर एमटेक और ऑप्ट फॉर इंटरव्यूज डायरेक्टली आफ्टर बीटेक? मतलब एमटेक करना चाहिए अगर मेरा एम पीएसयू जाना है, या फिर मुझे पीएसयू के लिए ट्राई करना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। दोनों ऑप्शन खुला रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। या नहीं, हाँ वही मतलब अभी देखो कैसा है कि आपने गेट दिया, आपका स्कोर कम आया, मैं पैटर्न समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं मतलब। नॉर्मली हाँ बहुत हाँ। लोग ऐसा करते हैं मतलब, रैंक आप नहीं ला पाए उतना जितना पीएसयू में चाहिए था, तो हम सोचते हैं कि तब तक एमटेक में ले लेते हैं मतलब। तो ऐसा आप कर सकते हैं, पर ये बात है कि आईआईटीज में अगर आप जाते हो तो आईआईटीज में आप सोचोगे कि आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद फिर मुझे गेट का पढ़ने का मुझे टाइम मिलेगा, तो आई थिंक फिर से मैं जो है सही बताऊंगा कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपका एम है कि मुझे सिर्फ पीएसयू चाहिए, तो आई विल से दैट यू कैन इवन ट्राई फॉर वन मोर ईयर एंड गिव योर बेस्ट एंड यू कैन एक साल और चेक कर सकते हो आप। बट अगर आप ऐसा एम बना के जा रहे हो आईआईटी में कि आईआईटी में प्लेसमेंट अगर मेरा होता है किसी प्राइवेट कंपनी में भी, वो भी मुझे चलेगा, देन यू कैन चूज फॉर दिस ऑप्शन, मतलब आइदर ऑफ देम रखना चाहिए, दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट का नाम है मोहिन पाटिल, पटेल, मोहिन पटेल, सॉरी। सो ही आस्क्ड कि आपने कुछ और कोर्सेज किया था क्या जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे? मतलब और कोर्सेज मतलब कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज या ऐसा कुछ किया है क्या? और आपने कैसे बैलेंस किया अपने कॉलेज के एजुकेशन को और सेमेस्टर एग्जाम को और गेट को? देखो मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किए थे, वो भी कहीं बाहर नहीं, मेरे कॉलेज में होते थे वो किए थे। हाँ। तो देखो मैं इसको भी फिर ऐसे ही आंसर करूंगा कि ऐसा नहीं कि वो करोगे तो खराब होए। ऑफ कोर्स हम्म एज मच यू विल नो, इट विल डेफिनेटली इट विल बी यूज इन द फ्यूचर, मींस कहीं ना कहीं आपको काम आएगा नॉलेज, ऐसा राइट नहीं कि वो काम नहीं आएगा। बट इट डिपेंड राइट। अपॉन योर शेड्यूल एक्चुअली, मींस अगर आप अपने शेड्यूल में फिट कर पा रहे हो चीज तो तब करो, ये तो अच्छी बात है मतलब। वो हम्म। काम आएगा, नॉलेज काम आएगा कहीं ना कहीं, पर सर्टिफिकेट टू बी ऑनेस्ट कहीं काम नहीं आता है मतलब, जो सच है मतलब। कहीं भी मुझे हम्म पूछा नहीं गया मतलब मैंने कितना सर्टिफिकेट किया, पर हाँ जो नॉलेज आप गेन करोगे कोर्स से वो आपके काम आ सकता है मतलब, जॉब हम्म में काम आ सकता है, या हो सकता है इंटरव्यू में उसके रिलेटेड कुछ पूछ ले, हम्म तो हम्म वो काम आ सकता है। पर अगर आपको शेड्यूल में अगर फिट हो रहा है मतलब, तो आपको सो या मीन्स लाइक अभी देखो कैसा है कि क्लासेस क्या करता है एग्जैक्टली exactly?
मतलब हमको एक ग्रुप देता है, मतलब जैसे मैं प्रिपरेशन किया तो मेरे साथ एक दो फ्रेंड मेरे हुए मुंबई के, मतलब दे वर इन मुंबई कॉलेज ओनली, तो वी यूज्ड टू कीप इन कांटेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का डाउट क्लियर करते थे। तो वो मुझे फ्रेंड कहाँ से मिला, उसी क्लासेस से मिला मुझे। फिर एक ऐसे एक दो मैं आपको प्रोफेसर मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वो एग्जाम दिया है, जिन्होंने ऑलरेडी उसके थ्रू दिया। तो ये सब चीजें आपको क्लासेस में मिलेगा, मतलब आपके आस पास में वो चीज नहीं मिल पाएगा। तो ऑल्सो यू विल गेट नो, मतलब अभी कैसा है कि घर पे हम मतलब सोचेंगे कि टाइम टेबल बनाएंगे कि पढ़ना है, तो हो सकता है हम इग्नोर कर दे उसको, चलो आज नहीं अब कल पढ़ते हैं, परसों पढ़ते हैं। और क्लासेस का क्या, आपको माइंड में फिक्स रहेगा, अरे क्लासेस से पैसा भरा है अब तो जाना ही है मुझे। तो वो आपका क्या माइंड में रहेगा कि अब तो करना ही यार, क्लासेस जाना है, और जाओगे तो कुछ ना कुछ पढ़ोगे सीखोगे। फॉर दैट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक ए डिसिप्लिन टू योर माइंड, आई थिंक इट इज नेसेसरी। राइट। और किसी ने पूछा है। नो, 10th एंड 12th स्कोर डजंट मैटर, बिलीव मी। हाँ 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 हाँ। किसी ने पूछा है ना 10-12 स्कोर का। कहीं भी नहीं पूछा, मुझे कहीं नहीं पूछा, कैसे भी मैंने अब तक इतने जगह इंटरव्यू दिए, इतना आईआईटीज में फॉर्म भरा, कहीं नहीं पूछा मुझे। ओके। सोमिक सोहम, नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स है। टोटल 18 सीट ऐसा नहीं है। किसी ने पूछा है कि खाली 18 सीट्स ही है क्या मुंबई के कॉलेजेस में, ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ब्रांच हर वाइज कॉलेज का सेग्रीगेट भी करोगे तो। अलग है और हर ब्रांच का हाँ, भी अलग है। ब्रांच का भी अलग है, राइट, कॉलेज का भी अलग है, ब्रांच का भी अलग है। खाली 18 ही सीट्स है ऐसा हो ही नहीं सकता। सो सर, डज आवर कॉलेज रिज्यूम प्लेज रोल फॉर गेट एडमिशन और गेट इंटरव्यू? प्लेज रोल मतलब मैं नहीं समझा। कॉलेज रिज्यूम प्लेज रोल, पता नहीं, मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ में। सेजल, इफ यू आर देयर, यू कैन रीफ्रेम योर क्वेश्चन, मतलब प्लेज रोल एज इन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 10-12 पे तो बता दिया आपने। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, हाँ दिस इज ए गुड क्वेश्चन। अनंत सिंह ने पूछा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएसयू इंटरव्यू एज वेल एज आईआईटी इंटरव्यूज। मीन्स एक्चुअली इट्स गुड क्वेश्चन। मीन्स मतलब ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने ये तय कर लिया कि मेरा तो रैंक आएगा ही, तो अब हाँ। मुझे आगे का सोचना है। अच्छी बात है। तो मेरा भी वही हुआ था, गेट में रैंक आ गया तो ऐसा नहीं कि मेरा वहाँ खत्म हो गया सब कुछ। तो बेसिकली डिफरेंस जो होता है, तीन तरह का इंटरव्यू मैं बोलता हूँ। आईआईटी का एक होता है, बीआरसी और दैट ऑल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और एक होगा पीएसयू का। तो इन तीनों के इंटरव्यू के पैटर्न अलग अलग होते हैं। आईआईटी mostly they will concern about the all engineering subject. Definitely they will be concerned about that only, they will not ask about you the other thing than the else. बीआरसी, डीआरडीओ, इसरो, ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इंटरव्यू जो होते हैं वो ज्यादातर मतलब प्रैक्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से ज्यादा होते हैं। मतलब आप दे विल पुट इन द प्रॉब्लम लाइक इफ इट दिस प्रॉब्लम हाउ यू विल सॉल्व दिस, समथिंग लाइक दिस। तो उसके लिए भी वही बात है, गेट में आप पढ़ोगे ही, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका रहेगा तो यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। And also their questions are unpredictable. They are framing the question at that point only. Means whatever answer you will tell, based on that they will frame next question. That is a way of interview of BRC especially. And I will talk about now PSU, which are mostly concerned, people are mostly concerned about it. So PSU interviews of two type: technical plus HR. In technical, I don't need to say anything. It will be about the subject only, but also not mostly all the subject, like basically which are linked to more practical related. Like for mechanical it is fluid mechanics, strength of material, thermodynamics, all about pump and compressor, something like this. And in HR you all need to know about something little about current affair as well. They can ask you anything, like anything about ministry, anything about what's happening around in the country, and also a little bit about yourself own, like what you do, what your hobbies and all. These are also asked in PSC interview. So all this you need to prepare before attending for PSC interview. ओके। सर यस। सर आई हैव अ डाउट सर, आपने जो आईएससी बोला था हम्म। वो लाइक रिसर्च से रिलेटेड होता है, तो क्या वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? यस भावेंद्र, मतलब क्या एक्सप्लेन एज इन, मतलब कोर्सेज कैसे होते हैं, हाउ दीज कोर्सेज आर रिसर्च ओरिएंटेड, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। यस सर। ओके। सो आईआईटी के जो शेड्यूल होता, लाइक आईआईएससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, दोज आर रिसर्च ओरिएंटेड। एज मीन दैट मीन्स, मतलब मैं सोमेश करके हमारे एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली वो आईआईएससी से पास आउट हुआ है, ही हैज बीन प्लेस्ड इन एनवीडिया। तो वहां पे भी आपको बहुत काफी सारे प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं,
ठीक है, आपका शेड्यूल काफी टाइट रहेगा। और जो कंपनी जो रिक्रूट करती है आईआईएससी में, दे रिक्रूट फॉर देयर R&D विंग। तो आईआईएससी में भी आप देखोगे जितने भी कंपनीज रिक्रूट करती है ना, दे मोस्टली रिक्रूट फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। सो सिलेबस ऐसा है वेयर यू विल गेट a lot of research work to do, you will get new topics, I'm मतलब sorry for that. Actually, I got a very important call. I have to okay, receive okay, no that. problem, no problem, you can take the Yeah. call, Yeah. Bhavin. What was हाँ, her question, Miss? Then you can repeat it. What exactly you want to know? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आईआईएससी बेंगलोर में जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होता है वो बेसिकली होता क्या है? सो वहां पे लाइक यू विल गेट टू रीड न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब ओके। हाँ, कुछ ऐसे चीजें भी देखिए पढ़ाएंगे वहां जिसके ऊपर पे ना रिसर्च हो रहा है। सब्जेक्ट वही होते हैं। हम्म। सब्जेक्ट वही होते हैं। मतलब अभी मैकेनिकल में वहां मेरा मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मैंने भी टेस्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। क्योंकि उसमें क्योंकि गेट का भी रैंक देखा जाता है, तो आई थिंक 216 रैंक भी सफिशिएंट नहीं था उसके लिए। मैंने भी हम्म। दिया था वहां पे। तो वहां पे सब्जेक्ट वही पढ़ाए जाते हैं। दे आर आल्सो कंसर्न अबाउट सेम सब्जेक्ट व्हिच यू आर लर्निंग इन इंजीनियरिंग। बट जो होता है ना कि उसको पढ़ के जो अपकमिंग, जैसे आपने बोला अपकमिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब इट्स लाइक यू नो व्हाट इज एग्जैक्टली इनोवेशन मींस लाइक यूजिंग टू नॉलेज यू कैन गेट अ न्यू नॉलेज। तो दो Right. चीजों को कंबाइन करके तीसरा आप कैसे बना सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड इनोवेशन, एंड दैट इज हम्म। आल्सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग देयर इन आईआईएससी। तो यही चीज ओपन वहां पे एंडेड, होता है, ये चीज या किया जाता है, वो सिखाया जाता है। आईआईटीज में भी अप्रोच वैसा ही है। आईआईटीज आल्सो, यू नो, बट आईआईएससी इज मोर करेक्ट। इनटू रिसर्च, आईआईएससी इज दे मोर आर इनटू मोरली रिसर्च, ओरिएंटेड बाय दैट ओनली मींस उधर ही, मतलब मोस्टली उनका फोकस उसी पे रहता है। और आईआईटी रिसर्च में पे भी रहता वो है। उस पे रहता है फोकस, पर किसी और चीजों पे भी रहता है। हम्म। तो देयर विल बी लॉट ऑफ ओपन एंडेड टॉपिक्स, हाँ, जिसके बारे में रिसर्च हो रहा है, वो सब टॉपिक भी क्लास में डिस्कस होता है। तो यू विल गेट असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, यू विल गेट टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एज वेल। तो वैसा रहता है। दैट इज अबाउट आईआईएससी बेंगलोर। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। व्हाट्स योर नेम? सर गौरी। सर गौरी, और गौरी, गौरी। ये सर और मतलब एक मिनट सर, मतलब वो एमटेक जैसा होता है? एमटेक कैसा होता है? नहीं मतलब सर, किसका लाइक गेट देने के, वो है मतलब क्या? मतलब एमटेक जैसा होता है या गेट देने के बाद कुछ कोर्स है, क्या है वो? नहीं नहीं, एमटेक ही है वो। आईआईएससी अच्छा में भी, हाँ, ओके एमटेक ओके, और वही एमडेस क्वेश्चन है क्या? दो प्रोग्राम, हाँ। वही एमटेक कोर्स ही है, एमटेक ही, वही है, एमटेक डिग्री मिलेगा एमटेक ही आपको वहां कोर्स पे। है। हाँ, ओके एमटेक सर। डिग्री मिलेगा। इंस्टीट्यूट का नाम आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वही डिफरेंस है, ओके बाकी कुछ नहीं। ओके, हाँ, हाँ। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ओके। ओ, सेजल का क्वेश्चन मुझे अभी समझ में आया। उसने वही पूछा है कि इफ रिज्यूमे प्लेज रोल मींस इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अप आवर रिज्यूमे फॉर गेटिंग एडमिशन। अच्छा, रिज्यूमे में मतलब ऐसा होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में आप मतलब जॉब के लिए जा रहे हो, तो ऐसा है मानना स्टूडेंट्स का, लेकिन आई डो नॉट थिंक इट इज ट्रू कि रिज्यूमे में काफी कुछ ऐसा रहता है कि मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये इवेंट में ज्वाइन किया, मैंने ये किया वो किया। तो ऐसा जितना लंबा लिस्ट रहता है आपका, हायरिंग जितना इजी हो जाता है। ऐसा पीएसयूज में या फिर आईआईटी में है क्या, वैसा वो पूछ रही है। दैट इज हर क्वेश्चन, नाउ आई गॉट इट। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। भावेंद्र, आपको क्या लगता है कि आप समझ रहे हो ना उनका क्वेश्चन क्या है? हाँ मैं समझ गया। देखो क्या है कि ये हाँ। जान समझ सकता हूँ मैं। रेज्यूमे देखो, हाँ। रेज्यूमे ऑफ कोर्स इज प्ले रोल, आई विल नॉट से, बट इट्स नॉट लाइक फॉर एमटेक में आप वहां पहुंचे हो गेट स्कोर देके, तो दे विल ऑलवेज मोस्टली वो लोग फोकस रहेंगे आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपके एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा, उस पे आप हम्म। परफॉर्म करते हो। तो रेज्यूमे आई विल नॉट, आई थिंक दैट दे विल नॉट बी मच फोकस ऑन दैट। हम्म। मेन आपका गेट स्कोर ही है। अगर पीएसयू रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे भी अगर आपका गेट रैंक अच्छा है ना, आप 85% आपका हो ही जाता है सिलेक्शन। तो रिमेनिंग जो जीडीजीटी होता है या फिर टेक्निकल इंटरव्यूज होता है या फिर एचआर राउंड होता है, उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो उसमें डिपेंड करता है। और उसका परसेंटेज बहुत कम है, 15% ही मतलब उसमें होता है, रिजेक्शन चांसेस रहता है उस प्रोसेस में। आर देयर इज देयर। वन क्वेश्चन ईशान हैज आस्क्ड. हाँ। I have not appeared again for GATE. Actually, what happened that MTech admission happened very early, miss, and the PSU result have been out for. डिलेड। It is out from after so many months. So I took the admission because I don't know exactly I will get selected in there or not. So इसलिए मैं एडमिशन ले लिया था वहाँ पे, बट उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वही था, इसलिए मैंने लिया। वापस गेट मैंने नहीं दिया मैंने। कौशिक ने पूछा है कि आर देयर एनी अब्रॉड कॉलेजेस व्हिच एक्सेप्ट गेट स्कोर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम? यस, देयर आर। जैसे मैंने बोला था, जर्मनी एंड सिंगापुर, दीज टू कंट्रीज हैव यूनिवर्सिटीज व्हिच एक्सेप्ट्स गेट स्कोर, ओके।
और उसके लिए 90 परसेंटाइल एंड अबव अगर आपका है, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटीज। टू नेम ए फ्यू ऑफ देम, NUS, National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore, TUM, Technical University of Munich in Germany. So these universities they accept GATE score. उनके वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, आपको अगर जाके विजिट करके देखना है वहां पे आप देख सकते हो क्या 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 क्राइटेरिया है। गेट्स को 90% लेवल, उसके आगे फिर आपको आपका प्रोफाइल बिल्डिंग मतलब SOP LOR पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड देन दे हैव ए हायरिंग प्रोसेस एंड दे आर recruiting many, hiring many Indian students based on GATE score. ओके, सो भवन आप भी देखो, क्वेश्चंस आपके लिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप ले सकते हो। ओके, कट ऑफ ऑफ अब्रॉड यूनिवर्सिटीज मैंने बोला ही है 90 परसेंटाइल एंड अबव। ओके, PSU रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओके, बेसिकली ऑफ कोर्स पहला गेट रैंक लाना है, फिर वही सेम मतलब सब PSU का अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। You have to fill that form and you have to give all the details for gate score and all everything. फिर they will call you for the interview, right? And mostly what happens, there are two types of process. Means mostly in general they conduct group discussion or group task and also personal interview. So in IOCL they conduct group discussion, group task and also personal interview. And in some PSU like ONGC they conduct directly interview. So in general there is these two process, group discussion and interview. And once you have done well in this, based on that they will give you the weightage for each and every, like 80%, 85% is for GATE score, 5% to your group discussion and 10% to your interview. And they will have some consolidated marks, and then based on that they will select you. ओके। लोकेश ने पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ करंट अफेयर्स, तो मैं बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंस PSU मैंने बोला दे आर ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जब आप PSU इंटरव्यू के लिए जाओगे दे विल वांट टू नो कि आप अवेयर हो कि नहीं हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है इंडिया का, जनरल मतलब जो करंट अफेयर्स है, कल न्यूज में क्या हुआ है, देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है, वही वही उतना ही उनको जानना होता है कि आप इग्नोरेंट तो नहीं हो। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी बेसिक, जो अभी रिसेंटली न्यूज में हुआ है ऐसा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अवेयर ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ, कंट्रीज प्रोग्रेस, कंट्रीज इकोनॉमी एंड कंट्रीज एवरी न्यूज। तो उसके लिए ही करंट अफेयर्स होता है बेसिकली। और इसका लेवल हायर होता है, जैसे आप सर्विसेज के एग्जाम दोगे तो वो हायर रहता है क्योंकि उसमें और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, आपको पूरा देश संभालना होता है, तो वो वैसा है। ओके, व्हेन Is current affairs used somewhere else? Sorry. Is there any other use of current affairs, like in any other exam or interview? Correct. Yeah, it is. Like there are some PSU which recruit to the GATE, but there are also some PSU they conduct their own exam, right? In that, what they do, mostly 75% will be technical and 25% will be your non-technical. In that, they are asking current affair question also. डेफिनेटली यूज आएगा, इंटरव्यूज में तो 100% आएगा। when should one give GATE exam, like in which semester? Okay, so I have already told that अभी थर्ड ईयर में भी आप दे सकते हो, फाइनल ईयर में भी दे सकते हो, एंड देयर इज नो लिमिट, मतलब आप कभी भी दे सकते हो, एज लिमिट कुछ नहीं है, बस एलिजिबिलिटी स्टार्ट होगा व्हेन यू विल बी इन थर्ड ईयर। यस हेलो, यस यस सर, अगर कंफ्यूजन है बिटवीन, हेलो यस मैम, आई थिंक यू हैव स्विच ऑन 2 डिवाइसेस, आप एक बंद कर दोगे तो सही रहेगा। 1 minute, so okay, yeah, so that's it. Sir, I have confusion between this GRE and this GATE. Right. So which means अगर मुझे सिलेक्ट करने का है सपोज, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ? जस्ट मुझे वही कंफ्यूजन है कि मीन्स ये जो अभी भाविन सर है तो उनको भी तभी जब उन्होंने गेट दिया तो उनको भी वैसे मीन्स आया होगा, मीन्स क्या कौन सा सिलेक्ट करने का है, तो क्या मीन्स सर आपका सजेशन क्या है? जस्ट वही मुझे कंफ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं। बोलिए भाविन। Yeah, I will tell you about what I think about this question. It's like my personal opinion. See, basically GRE means something you're directly talking about to study in foreign university, right? So, yes sir. Yeah, so GATE is all about you can get opportunity in mostly in India and also some of the foreign university. So it's like basic main difference is that GATE is mostly about technical subject of your engineering subject,
and GR is all about your aptitude, aptitude skill, like your quantitative reasoning, verbal. If you are strong in that, you can go for it. But I will main point is that, to be honest, I will say you that if you want to study in foreign, it's most Yeah. important thing is what you need is money, right? That is the main point. I Okay. will talk to about that. If you really being very what do you call that, which if you can manage all these things, then it is not bad to study in foreign university. It's good actually. They have got a very good colleges. You can go and learn there as well. You can make your career there as well. But if something like you cannot manage that part, then I will say you, then you can go for GATE also, because studying from IITs also you will get a good opportunity from there as well, because Yeah. Okay. opportunity after GATE also. So that depends on your own how you can manage the things. That is the difference between these two. Okay. Yeah. Okay. So, So ma'am, okay. ma'am, Yeah. ma'am, Yes, sir. to simplify this, actually, there is no difference as such in terms of courses. Like if you go abroad also, GRE will give you opportunity. GRE basically होता क्या है? मैं यहाँ पे questions काफी आए थे GRE के भी. GRE is an exam conducted by ETS, okay, which is a exam conducting body of United States. Okay. So आप जब GRE exam लेते हो, basically you are eligible to apply for master's program in the US university. US in. Now GRE Okay. exam, since it is popular, it has been accepted in universities worldwide. अब बाकी universities मतलब compulsory नहीं है, but if you have a GRE score, they will know that इनका aptitude अच्छा है, verbal. It is totally non-technical. Now, student need to choose based on their financial background, as he clearly mentioned. Okay, Okay. so Okay, sir. Okay. That if you is actually have first point one will think to give GRE. I will say. आपको 35 to 40 lakhs on an average मैं बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन which country you are going, which university you are going, उससे ज्यादा भी हो सकता है खर्चा, और मे बी यू कैन मैनेज टू. हाँ, तो अगर Yeah. आपके पास है फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, देन गो, यू कैन गो फॉर GRE अगर आप बाहर मैनेज कर सकते हो. अदरवाइज गेट एग्जाम के थ्रू थोड़ा सा, मतलब मैं क्या Hello. बोलूंगा, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बिकॉज टेक्निकल है, और थोड़ा स्टूडेंट को थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा. मतलब अगर आप 2 साल के लिए प्रिपेयर करो तो 2 साल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. ओके, देन गेट में अगर आपका स्कोर आया ना, यू विल गेट Sir. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मोर देन डबल है. क्योंकि आप जब एमटेक करोगे आपको कुछ खर्चा नहीं है, आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा. आप जब प्लेसमेंट मिलेगा आपको आराम से, मतलब 15 लाख के एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल जाता है. जब पढ़ाई करने जाओगे तब भी आपको कुछ खर्चा नहीं है, एग्जाम फीस भी कुछ नहीं है. तो वो वैसा है, वही डिफरेंस है मैम. ओके सर. सर अगर मैंने सपोज गेट दे दिया एग्जाम. ओके. राइट राइट. मैंने गेट दे दिया और मैं दोनों एग्जाम दे सकती हूँ मीन्स क्या, ऐसा मैं जस्ट पूछ रही हूँ. दे और सकते हो, उसके बाद लेकिन मैं डिसाइड कर सकती हूँ क्या मुझे क्या करना है. सपोज मेरा और गेट का आपने बोला है ना वैलिडिटी 3 इयर्स. हाँ, गेट का 3 इयर्स है, GRE का स्कोर वैलिडिटी 5 इयर्स रहता है. ठीक या है, या आप यू कैन अपीयर बोथ द एग्जाम, नो हार्म इन दैट. बट इसमें क्या होगा कि आपका फोकस शिफ्ट हो सकता है. ओके. ओके सर. बोथ द एग्जाम विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोकस. ओके, बी इट गेट और बी इट ओके. GRE, ओके. आपको फोकस चाहिए. तो आई थिंक आप रादर देन, आई थिंक भावेंद्र वुड आल्सो एग्री विथ मी ऑन दिस, रादर देन आप अपना फोकस ऐसा शिफ्ट करने से, 2 जगह पे डालने से अच्छा आप एक डिसाइड करो, एक जगह पे ओके. डालो और वो करो बेस्ड ऑन योर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड. ओके सर. ओके. ओके. क्या ठीक है. बोलते हो भावेंद्र? या डू यू मीन्स एग्री लाइक विथ मी? आपने एक कुछ ऐसे सोचा है, ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसे इंडस्ट्री में आपको वर्क करना है या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है जो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी के कॉलेज के थ्रू ही आप वहां पहुंच पाओगे, मतलब तो फिर डेफिनेटली आपको GRE पे गोल करना चाहिए. मतलब बट आपका एम ऐसा है कि मतलब या आई वांट सम बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सम गुड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन परस्यू माय करियर. सो वो तो इंडिया में ही मतलब अच्छे खासे है, मतलब PSU है ही, मतलब फिर IITs के थ्रू भी आपको अच्छे से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग सकते हैं आपको. तो फिर आप गेट के थ्रू भी जा सकते हैं. मतलब तो ये ऑप्शन इस पे भी है कि आपने क्या सोच के रखा है. मतलब भावेंद्र, एक सुमंतो करके एक स्टूडेंट है मैम. आई थिंक योर दिस थिंग आंसर इज लाइक वी वुड. हेलो, यू आर देयर स्टिल? ओके, आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सुमंतो करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि भावेंद्र, व्हाट टू डू इन लास्ट 5 days बिफोर गेट. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. last 5 days, yeah, means like you have to revise your subjects. Means like what notes you have made, just do that. And if you have some, you can manage the time, you can solve some problem as well.
So it's like last 5 days. I will say that last 15, last 20 days pattern will be that only revision and practicing and giving a test series. So I will say that you can revise the subject and give the test series full length test series in the last 5 days. So before one day you can skip this, you can relax and you can have a short revision of. ओके ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछता है कि स्टार्ट कब से करो गेट प्रिपेयर करना. राइट टाइम इज नाउ. आप सेकेंड ईयर में हो तब भी आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए, और जो लोग थर्ड ईयर में उनके लिए तो लाइक पानी अभी सर के ऊपर है, तो आपको इमीडिएटली करना ही करना चाहिए. तो ऐसा कोई राइट टाइम नहीं होता है. इवन आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. फर्स्ट ईयर में मैथ्स आप कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड कर सकते हो, तो क्यों नहीं, है ना. सर सो या सर गेट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ और कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं उसका बता दो. हाँ, गेट अगर आप मान लीजिए गेट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो यू कैन गिव बीआरसी एंड इसरो एंड ऑल्सो आईईएस में और गेट में डिफरेंस ये होता है कि मतलब उसमें एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी. उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना है. बाकी टेक्निकल पार्ट अगर आपने गेट अच्छे से पढ़ लिया है तो ऑलमोस्ट मोर और लेस टेक्निकल पार्ट आप हैंडल कर सकते हैं, मतलब आईएएस के भी. और आईएएस फिर डीआरडीओ का कैसा होता है कि दे शॉर्टलिस्ट फ्रॉम द गेट स्कोर बट दे आल्सो कंडक्ट देयर ओन एग्जाम आफ्टर दैट. तो डीआरडीओ का भी जो सिलेबस पैटर्न है मोर और लेस सेम है गेट के जैसा टेक्निकली ये पूरा. और भी बहुत से ऐसे एग्जाम है, जैसे लास्ट टाइम भेल ने खुद का एग्जाम किया था एंड आई थिंक सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड में खुद का एग्जाम किया था. इस तरह क्या होता है कुछ पीएसयू गेट को छोड़कर खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करती है, तो उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका गेट के प्रिपरेशन से कवर हो जाएगा. मतलब ओके, सर पीएसयू भी इसी में आ गया ना. ऑफ कोर्स. मतलब सॉरी सर पीएसयू जो आपने कहा वो भी इसी में आ गया ना गेट के पैटर्न. या वही देखो कुछ पीएसयू गेट से लेती है, कुछ पीएसयू खुद का एग्जाम भी लेती है. तो आप सिर्फ गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो आपके बाकी पीएसयू के एग्जाम को भी प्रिपरेशन हो जाएंगे साथ में. सर और इसरो का मैंने जितना देखा है एक आईसीआरबी का भी एग्जाम होता है, तो उसका सिलेबस एक्स्ट्रा होता है थोड़ा और कि सेम ही होता है. इसरो का कौन सा? आईसीआरबी ओके. इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड. हाँ, एक्चुअली दैट इज द वही रिक्रूटमेंट है बोर्ड फॉर मतलब. हाँ इसरो. मैं समझ गया. हाँ उसी का शॉर्ट फॉर्म में बोला है. हाँ. वही है मतलब एक्चुअली यार इससे सेम ही होता है. उसके क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं थोड़े से अलग हो जाते हैं. वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होते, क्योंकि कैलसी तो होता ही नहीं उसमें, वो ऑफलाइन होता है पेपर. तो वो थियरी में ज्यादा वो लोग क्वेश्चन पूछ देंगे. न्यूमेरिकल थोड़े रहते भी तो सारे सिंपल रहते हैं. तो पर आपने अगर गेट का किया है प्रिपरेशन तो आपको उसमें भी आपको हो जाएगा. मतलब जैसे मैंने पर्सनली दिया था तो मुझे अलग से पढ़ना नहीं पड़ा बीआरसी के लिए, इसरो के लिए. तो वो हो गया मतलब उसी गेट के प्रिपरेशन के साथ ही हो गया मेरा. ओके. सर और सेम जैसे गेट में 4th ईयर तक दे के कंप्लीट हो जाता है वैसे इसरो का भी हो जाता है, इसरो और डीआरडीओ का. ओके Preparation. देखो हाँ इसका तो आई थिंक लाइक यू नो इफ यू विल गेट सिलेक्टेड एंड यू हैव टू जॉइन आफ्टर दैट ओनली. सो उसके लिए तो ऑफ कोर्स 4th ईयर के बाद ही होगा. मतलब वो व्हाट आई थिंक एग्जैक्टली मतलब मुझे नहीं पता. मतलब आई नहीं डोंट सर मैं रिकॉल इट वैसे राइट नहीं नाउ. पूछ रही हूँ. वो पूछ रही है कि प्रिपरेशन साथ साथ में हाँ. हो जाएगा क्या गेट के साथ साथ. हाँ. ऑफ कोर्स हो ओके जाएगा ना, ओके वही बोल. हाँ हाँ. हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा. और सर आपने जैसे कहा कि रेज्यूमे मतलब इतना सीवी इतना मतलब देखते नहीं है वो लोग इंटरव्यू के वक्त, लेकिन हमें अभी कहा गया कि एटीएस सिस्टम से चेक होता है कि मतलब आपका रेज्यूमे पहले चेक करेंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. कौन सा कॉलेज कौन सा? क्या कौन सा कॉलेज से क्या सिस्टम है? एसएनडीटी सर. मतलब एक ये था सेमिनार था, तो उसमें बोल रहे थे कि पहले मतलब जैसे वो लोग लेते हैं इंटरव्यूज, वो लोग क्या चेक करते हैं, डायरेक्टली टाइप करेंगे इंजीनियर्स, फिर कौन से चाहिए उनको. वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का सेशन है. कैसा होता है ना, जब नौकरी वगैरह में आप रेज्यूमे डालोगे ना, उसमें कैसे प्रोफाइल होते हैं वो पूछ रहे. अच्छा हाँ तो हाँ, वो रेज्यूमे हाँ शॉर्टलिस्टिंग है. ऑफ कोर्स ना, मुझे इंजीनियर हायर करना है तो मैं इंजीनियर मारूंगा ना कीवर्ड्स में, तो नहीं मुझे नहीं नहीं इंजीनियर. नहीं सर वैसे नहीं, मतलब वो लोग स्किल्स भी चेक करते हैं कि किसके पास ज्यादा skills. हाँ हाँ, वो समझा मैं रेज्यूमे समझा. शॉर्टलिस्टिंग. हाँ, पीएसयू रिक्रूटमेंट लाइक प्रोसेस में ऐसा नहीं है. मैं समझ गया इनकी बात. मतलब जैसे हाँ अभी हाँ. जो कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट है
उससे हाँ। लिंक अगर वो रेज्यूमे में उसने वो किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स हाँ। किया है, तो उसको ही हम बुलाएंगे डायरेक्ट, शॉर्टलिस्ट होंगे। ताकि हाँ। इजी हो जाए हमारे लिए। बट ऐसा हम्म। पीएसयू में ऐसा नहीं होता है, मतलब पीएसयू में कहीं भी रेज्यूमे नहीं पूछा गया है, नहीं उस पर फोकस किया गया है, मतलब they are mostly concerned about the gate score and how you perform in the interview, these two only. Yeah. So ठीक है. Like I think we are also running out of time. I think Bhavendra have a meeting I think around 12:30, right? So हम लोग अभी क्विकली रैप अप करेंगे. So before wrapping it up, मैं फटाफट आप लोगों को 2-3 चीजें और बता देता हूँ. So I think my PPT is visible, right? Okay, so बहुत लोग सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे. वी कैन शेयर द सिलेबस अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, हम लोग फिर से आपको सिलेबस शेयर कर देंगे. तो हमारे पास है, तो जिन जिन लोगों को सिलेबस चाहिए आप लोग प्लीज कांटेक्ट कीजिए विद्यालंकर को, हम लोग सिलेबस शेयर कर देंगे. एंड we are starting a batch for second year of engineering students this 7th of February. Okay, so उस बैच में क्या क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ. वन, क्लासरूम कोचिंग जो अभी ऑनलाइन होने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू डू ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग, तो ऑनलाइन होने वाला है कंप्लीटली. हम लोग आपको रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देंगे, प्लस वी विल ऑल्सो गिव यू स्टडी मटेरियल. ओके, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों. प्लस वी विल कंडक्ट ए लॉट ऑफ टेस्ट. 15 जो भावेंद्र ने बोला था मॉक टेस्ट लेना है, वो 15 मॉक टेस्ट हम लोग देने वाले आपको. प्लस वी विल कंडक्ट सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट. वो टोटल काउंट होकर अराउंड 48 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी विल बी गोइंग टू give you now. So this is how the video lecture interface looks like. Okay, तो कुछ इस तरीके के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप ऑनलाइन इसको एक्सेस कर सकते हो माई कजाबी प्लेटफॉर्म पे. एंड दिस इज हाउ द टेस्ट सीरीज लुक लाइक. तो ऐसे करके हम लोग फुल लेंथ टेस्ट FLT बोलते हैं, तो वी विल गिव यू 15 फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू गेट. ओके, मॉक टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको मॉक करना है एक्चुअल टेस्ट को, तो आपको इमिटेट करना है. जब आप मॉक टेस्ट ले रहे हो ना, तो आपको वही सेम एनवायरमेंट क्रिएट करना है, 3 घंटा बैठना है. ओके, 3 घंटा बैठ के ही मॉक टेस्ट लेना आपको. तो ये मॉक टेस्ट है. वर्चुअल कैलकुलेटर जो भावेंद्र ने बोला था, दिस इज हाउ द वर्चुअल कैलकुलेटर लुक्स लाइक. तो आपको ऐसा कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करना है. सो विल गिव यू दिस एज वेल. उसके साथ साथ दिस इज हाउ यू विल गेट एनालिसिस कि आपने कितना स्कोर किया. एंड आवर मॉक टेस्ट इज टेकन बाय स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया. ओके, सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपका कंपटीशन कितना है, हाई स्कोर कितना है, लो स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर कितना है, आपने कितना निगेटिव मार्किंग किया, ये सब चीजें आपको पता चलेगा. So our batch start date is 7th of February, this Sunday. Okay, जिन लोगों को एडमिशन लेना है, you can visit any of our विद्यालंकर सेंटर नियर बाय. आपके साथ जो जो कांटेक्ट में है विद्यालंकर के एग्जीक्यूटिव, उनसे भी आप फोन पे बात करके एडमिशन ले सकते हो. और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, यू कैन टेक एडमिशन. और आप लोग डायरेक्टली कॉल करके भी एडमिशन ले सकते हो. ऑनलाइन भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, आपको सेंटर भी जाने का जरूरत नहीं है. वी हैव ए पेमेंट लिंक, आप लोग डायरेक्टली पे करके ले सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल फॉर second year of engineering students. We will start with semester 4 and we will go till semester 7. और आप GATE 2023 दोगे. Okay, which will be in the month of February 2023. आप लोग 2022 भी अपियर कर सकते हो. Okay, so जब तक आप लोग 2022 अपियर करोगे, we will complete at least 50 to 60% of the syllabus, so that you can easily appear the first attempt in third year, and you give the actual attempt or the final attempt in fourth year of engineering, right? फीस कितना है? एक्चुअल फीस 45,000 था. वी हैव ए अर्ली बर्ड कंसेशन व्हिच इज 36,500. उसके साथ साथ ग्रुप कंसेशन है. ग्रुप कंसेशन कुछ नहीं, आप लोग 3 का ग्रुप बना के आओ. आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो, डजंट मैटर, हमें खाली 3 का ग्रुप चाहिए. आप 3 का ग्रुप, 3 लोग एक साथ आओ, यू विल गेट 12,500 स्टेट कंसेशन. तो आपका फीस और कम हो जाएगा, 34,500 हो जाएगा. सो दिस इज द टाइमिंग. आप लोगों को सबको शेड्यूल दिख रहा है यहाँ पे. संडे को 8 to 10:30 है, 2.5 आवर्स का लेक्चर है. फिर उसके बाद सेमिस्टर 5 को संडे को ही लेक्चर रहेगा. वी विल इंक्रीज द टाइमिंग बाय 5 आवर्स. ओके, तो 5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा. BT जो लिखा हुआ है, ये बोरीवली थाने है, ये दादर बोरीवली थाने नेरुल है. तो अभी सब ऑनलाइन है, तो सबका टाइमिंग सेम है. अगर बाद में क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो गया तो ऐसा टाइमिंग रहेगा. बोरीवली थाने, BT मतलब बोरीवली थाने, और ND मतलब नेरुल दादर. तो ऐसा टाइमिंग रहेगा. सेमिस्टर 6 में हम लोग फिर से आवर्स बढ़ा देंगे, 7.5 कर देंगे. फिर सेमिस्टर 7 में 7.5. Sir. हाँ. Sorry to interrupt you. Actually, I have to leave. Okay, no problem Bhavendra. Thank you for joining today. Okay, और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेरी रहेगा, आप लोगों को भावेंद्र के साथ आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो. Yeah, definitely. Yeah, I will be happy to help them. और एक लास्ट भावेंद्र, कुछ लास्ट उनको कुछ टिप्स या फिर कुछ आप देना चाहते हो उनको, लास्ट सजेशन एडवाइस जाने से पहले?
टिप्स में यही बोलूंगा मतलब कि देखो कैसा है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, मतलब व्हाट वाज योर 10th 12th एंड सेकंड ईयर रिजल्ट, दैट वाज समथिंग डिफरेंट थिंग, और वो हो चुका है अभी। अभी आज आप इस सेशन के बाद अगर आप माइंडसेट बना लिए, जैसे मेरा तो हुआ था थर्ड ईयर में, मैंने माइंडसेट बना लिया था कि आप तो करना है गेट, अभी पीएसयू में जाना है, आईआईटी में जाना है, दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। वो तो फाइनल ईयर में आके भी कंफ्यूजन था दिमाग में क्या करना है मुझे, बट करना है, गेट का पढ़ना है मुझे, मतलब तो वो माइंडसेट आप बना के आप स्टार्ट कर दीजिए बस। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपका हो ही जाएगा पीएससी में, आईआईटी में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। मतलब इफ यू विल वर्क हार्ड फॉर इट, यू विल गेट समथिंग बेटर फ्रॉम इट, दैट्स इट। Yes. Thank you, Bhavendra, and या all the best. हम लोग आगे भी टच में रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को रहेगा एड्रेस करने के लिए, वी विल डेफिनेटली कांटेक्ट definitely, यू। yeah, I will be happy to help them, and very all the best to all of you. Miss, I can feel your energy. What I was also at that same stage 3 or 4 year back actually, so I can understand what all this question and everything. I can tell you one thing that बस आप लोग एम बनाओ, मेहनत करो, और you will get something better. You will get something better. थैंक यू, थैंक यू, Okay then. थैंक्स अ Yeah. लॉट। यस 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 यस। सो आई वाज देयर कि ऐसा सिलेबस है आपका, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड वी विल गो टू द एडवांस लेवल। सो इनिशियली 2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, फिर 5 घंटे का हो जाएगा, फिर 7.5 ऐसा। ओके, सो जिन लोगों को इंक्वायरी करना है प्लीज फील फ्री टू कॉल एंड आस्क। देन गेट 22, जो अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर कोई है यहाँ पे, या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अभी खाली 1 ही साल है, फटाफट से आप लोगों को ज्वाइन करना है। ये बैच टाइमिंग है, सैटरडे संडे को लेक्चर है, सेम 6 और सेम 7 पे। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, देन लेटर ऑन इट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन। फीस आप लोग का ऐसा है, तो फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, क्योंकि आवर्स ऑफ टीचिंग सेम है, लेकिन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, बिकॉज वी वांट टू मोटिवेट देम, एंड सेकेंड ईयर से प्रिपेयर जो लोग करते हैं ना, उनका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ओके, सो और यहाँ पे भी सेम ग्रुप कंसेशन है, आप लोग 3 का ग्रुप फॉर्म करके आओ, डजंट मैटर विथ हुएवर इट इज, अलग अलग ब्रांच से भी होगा चलेगा, आप लोग ग्रुप फॉर्म करके आओ एंड यू टेक कंसेशन। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, बाय दिसंबर योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, एंड जैन में वी विल डू लास्ट मिनट रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन, एंड फरवरी में यू विल हैव योर गेट एग्जाम। ओके, these are some of our rankers. Okay, this is Bhavendra whom you met today, and I will try to get some other people also in other further webinars. So these are some of our rankers who are there in different companies and organizations. अलग-अलग जगह पे है जो लोग last years का. So that's it. Thank you all, and a lot of questions you have asked, and I hope we are being able to resolve all your doubts and queries. इसके अलावा भी अगर आपके पास still you have confusion, you have doubts, feel free to get back to us. Okay, जो भी any type of question, feel free to get back to us, and we will try to you will try to resolve it as much as possible. Okay, so thank you all and have a great day. आज Sunday है, have a great Sunday. और yes, किसी को कुछ क्वेश्चन है? Sir, या sir, I live in Mankur, so like if offline sessions are started, so how can I attend? मानखुर ना, मानखुर से क्या पास में होगा? इवन आई एम कंफ्यूज। सी 4 सेंटर में है अपना, दादर, थाने, नेरुल और बोरीवली। आपका कौन सा लोकेशन पास में होगा? Nerul would be the nearest branch, I guess. Nerul Yes, would be the nearest branch, so you can come to Nerul. sir, you like the presentation which you showed, there was not Nerul in that. No, it's there, DBTN, N is for Nerul. Okay, okay. हाँ, N नेरुल है। ओके, यहाँ पे मैंने 4, आप सेकेंड ईयर से हो, थर्ड ईयर से हो? Second year, sir. सेकेंड ईयर से हो ना? हाँ, ये नेरुल है, नेरुल का टाइमिंग है ये सब 1:30 to 6:30। सो नेरुल में Sir, in the ऑफलाइन SEM लेक्चर 5. जो होता है ना, वो कैसे होता है? हाँ, सेम 5 में। ओके, सो दिस विल बी द ऑफलाइन लेक्चर, 1:30 to 6:30 संडे को होगा। ओके, Okay, okay. Got it, sir. N is for नेरुल एंड D is for दादर। Yes, yes. Okay. ठीक है, और किसी को कुछ फीस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या फिर कोर्स रिलेटेड? Naushad is also there. He can also answer a lot of your questions. Enroll. Sorry? How to enroll? Naushad, if you can share the payment link and the details, like वो जो हमने एक मैसेज बनाया था ना व्हाट्सएप टेक्स्ट, Yes, वो yes. I'll ग्रुप just में डाल दो share ना। both. हाँ हाँ, मैं अभी हाँ डाल
हाँ, उसमें आप घर से भी एडमिशन ले सकते हो, आपको आने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ असिस्टेंट चाहिए ना, तो आप नौशाद से बात कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है? So the lectures ये will be नंबर नोट live डाउन or कर लो। recorded? लाइव लेक्चर, वी विल गिव यू रिकॉर्डिंग, स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए है, बट लाइव लेक्चर ही आपको अटेंड करना है। और कुछ क्वेश्चन है, कैन वी पे बाय इंस्टॉलमेंट? गुड क्वेश्चन। यस, यू कैन पे बाय इंस्टॉलमेंट। तो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए पहला इंस्टॉलमेंट मतलब आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिनिमम यू हैव टू पे सम अमाउंट, XYZ अमाउंट, वो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, ओके? लेकिन आपको 3 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करना है। सो बेसिकली वट एवर इज योर फीस, यू हैव टू डिवाइड बाय 3 एंड यू हैव टू पे इन 3 इंस्टॉलमेंट। तो ऐसा है। और अगर आप लमसम पे करते हो देन यू कैन गेट डिस्काउंट ऑल्सो। अगर आप लोग एक साथ पे करना चाहते हो तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? व्हाट अबाउट पुणे? या फॉर पुणे ऑल्सो वी हैव अ बैच। तो पुणे के लिए भी आप पुणे से आप ज्वाइन किया है क्या आपने? साई रमन। सो वी आर हायरिंग, लाइक वी हैव अ बैच फॉर पुणे एज वेल। तो आप लोग पुणे के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। द कोर्स फीस एंड स्ट्रक्चर इज सेम, ओके? थैंक यू मोहम्मद इरफान। एंड सो ये दो जो मैसेज लिखा है ना, इसमें सारा डिटेल है। दिस इज फॉर 2023, ओके? और नीचे वाला 2022 के लिए। इसमें 3 चीजें आप लोग देख सकते हो, एक पेमेंट लिंक है, एक एडमिशन फॉर्म है और एक ब्रोशर है। तो आपको ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेमेंट लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे डायरेक्टली जाके पे कर सकते हो। कितना आपको पे करना है वो एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना। एडमिशन फॉर्म, उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है, आपका पूरा डिटेल्स डालना है, देन वी विल ऑनबोर्ड यू। एंड फिर थर्ड में ब्रोशर है, जहाँ पे आपको गेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये जो शेड्यूल दिया है मैंने वो ब्रोशर में है। सेम सेम ये 3 लिंक हम लोगों ने दिया है, ये आप लोग ये 3 लिंक यूज कर सकते हो टू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस। एंड वी विल बी स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 7 फरवरी। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्राई करो ग्रुप डिस्काउंट लेने के लिए। स्पीक टू योर फ्रेंड्स, 3 का ग्रुप बनाओ और फटाफट डिस्काउंट लो और सीट बुक कर दो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देकर, ठीक है? सो दैट्स ऑल। Thank you all for joining in. Sir? Have a great day. Yes. Jaldi. Sir, can you tell about the systematic self-learning program by Vidyalankar? Which one? This program is basically for students who are outside of Maharashtra. This is not for students who are from Maharashtra, because we do not, we do not believe in self-learning program. Okay, जैसे भावेंद्र ने भी बोला है, you need guidance from faculties and teachers. क्या होता है ना, students who go for this program, ये basically कैसा रिमोट लोकेशन में है ना, कोई किसी के पास एक्सेस नहीं है, उनके लिए है ये प्रोग्राम, ठीक है?